एक मिनट मैं बिना सबको बोलती हूँ कि स्ट्रीमिंग शुरू कर दो। Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, you are. May I start? Principal ma'am, may I start the workshop? Yes, yes. A very good afternoon,
Focus on being productive instead of busy. With these golden words, I, Simana, organizing secretary of the workshop, extend a warm welcome to all of you in one day national workshop. I express my gratitude to the eminent speaker of the day, Mr. Hamis Yadav sir, for giving his consent to share his views with us. Once again, I welcome you all. Now, without taking much time, I invite our worthy principal ma'am, Dr. Gagandeep Kaur, to extend a formal welcome. Over to you, principal ma'am. Respected resource person, Mr. Dinesh Yadav, international speaker and behavior consultant, Madam Poonam Bagi, convener of the event, and dear participants. I, Dr. Gagandeep Kaur, Principal, Government College for Girls, Palwal, Kurukshetra, welcome you all on the occasion of national level workshop Enhancing Focus and Productivity for Success, organized by Counseling Cell Let's Talk of Department of Psychology. The aim and objective of the event is how to focus for attaining overall and for our overall happiness and for productive and creative work at workplace and at housework. Today we are having busy and hectic schedule. We need such ideas and techniques for nurturing our mental health and behavior. Focus is so important because it is the gateway of thinking, problem solving, and decision making. Without focus, all facts of ability to think will suffer. Without focus, we won't be effective in our work. If we are not concentrating on the things or distracted, we won't be capable of getting our work done. Every time our mind is wandering away. So for highest quality of work, we need good focus. So in this session, our resource person will suggest the ideas for ideal focus that will result in productive and efficient output. Again, welcome our chief guest and the other participants, and I appreciate Dr. Poonam and her team for organizing this event. Thank you. Thank you, ma'am. You always being an inspiration to us. Before starting the session, I would like to take the opportunity to introduce our participant with the theme of the workshop. Theme of the workshop is how to focus for better, quicker, and productive success and improve the quality of life. Why is being focused so important in today's world? What results when you are focused? Does being focused make you less stressed, more happier? If it is so important, why don't people focus more? Being focused on one thing for a certain period allows you to do a better quality of work, more work get done quicker, and your creative ideas flows easier. Being focused on one task at a time is less stressful on your mind, and being less stressed always you be happier, thus improve the quality of life. A quote, a less talented person with focus will always win than a more talented distracted person. In the journey of focus mastery, we would be overwhelmed if Mr. Hamesar would share his views, his expertise on the same. Before inviting sir, let us have a look on his achievement. Our today's resource person, Mr. Hamesh Yadav sir, is a behavior expert, international public speaker, EDISC personality profile consultant, author of a book, Ultimate Communication Secrets, Create Automatic Success. From the last 24 years,
he is studying and working in the same industry, that is human behavior. He is so passionate about his subject that he studied only one stream, did his bachelor's with the psychology honors and master's in the psychology, and did master's in philosophy in clinical psychology. He has published national and international academic papers before moving to Australia. He worked as a clinical psychologist in different hospitals and ICMR, one of the India's premier institute, ex-member of Australian Psychological Society. He is working very close to the community and always ready to help, and now he runs his coaching and training business center under the name of Royal Life Coaching Center and assisting people to grow in their personal life and the business life. He understands human behavior codes and knows how to decode them. During COVID lockdown, he served more than 5,000 people through online platform and personally. He had given his services for the very prestigious institute in India like Kurukshetra University, Kurukshetra, Chaudhry Bansilal University, Bhiwani, All India Association of Applied Psychology, as well as in Australia, Ghar, Jito, and other non-profit organization, Australian National College, and other institute as well. Thanks, sir, for showing your humanity. Recently, sir has delivered a offline talk at West College, Bhiwani. Last but not the least, sir has delivered an online talk with Indian community on topic Change Your Words, Change Your World, organized by Personality Care Foundation. I feel honored to invite such a versatile personality to share his views. GCG Palwal Kurukshetra family welcomes our today's prominent speaker, Mr. Hamesh Yadavji. Over to you, sir. Thank you very much, ma'am. It's really great to hear about a lot about me. It seems like you're talking to someone else. Thank you very much for all welcome, and I really appreciate the whole team is organizing this workshop, this talk. Always feel glad to because it is not first time I'm working with you guys. I've done this before as well. So focus pretty much, you already covered what I'm going to talk today. In a nutshell, you already covered. But I wanted to share in more simplistic language in day-to-day life, how we can use it, what happened with us, what is the meaning of the focus, because I'm the one who believe in this very simplistic. My language is going to be very simple. There's no technical term I'm going to use except one or two words. Otherwise, very simple day-to-day language. And the whole intention I have to make it show you grab something out of this talk. You learn something and which you can implement straight away as soon as we finish the talk. Because having a knowledge is a great part, no doubt. Using that is more important. We're going to talk about a little bit about that as well. And can I share my slides with you all so you can have a little extra fun? Let me share if you can see. Please tell me. We need to speak because right now I'm not able to see anyone. No chat, no thumbs up, nothing. Because the Zoom is my kind of very familiar territory, and Google Meetup is not that much familiar. So, are you able to see my slides and can you hear me? Please, Dr. Sapna, could you tell me? Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to see my slides? Yes, sir. Visible. Your slide is visible. Thank you very much for confirming me that. And let's, I want to everybody, is take it like next 1.5 hour max, okay? Pretty much 1 hour. Like you're going to sit in a plane and you need to put seatbelt properly tight. It's because when you are in the plane, the thunderstorm comes and the pilot says, put your seatbelt tight. Tighten your seat, okay? So We will like enjoy that. it. We will enjoy it. Yeah, please sit like that, pay focus, pay attention, and make it notes as well. Make it notes in a way you're going to share
the knowledge you're going to grab right now to someone else. Okay. After today, you're going to talk few things. I'm very sure about that. There's a few funny stuff as well in between. And those are in the same college. They can use that knowledge pretty much for reminding each other. So just, I want to bring everybody attention over here. Think for a moment. When you decided last time to complete some task and it didn't go well, especially lots of the people, they said that every new year, oh, I'm going to do this activity, especially physical activity. Students think about after exams, oh, next year I'm going to study very well. I'm going to make my timetable. How many of you decided that and didn't go well? How many of you? If you want to look at your own promises which you made with yourself, more than 80% didn't go well. More than 80%. And the reason behind that, you will come to know. Stay with me throughout the journey and you will come to know everything. And Sir, may I disturb you? Sir, I think participant will be more comfortable in Hindi language. okay, let's Can we proceed in Hindi? बिल्कुल बिल्कुल Please. अच्छा हिंदी की साथ साथ ये बता pretty much कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा करी तो आई कैन स्पीक हरियाणवी वेरी वेल टू ओके आप मुझसे हरियाणवी में बात कीजिए जिनका कोई भी सवाल है हिंदी में बात कीजिए पंजाबी में बात कीजिए और इंग्लिश में बात कर सकते इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख रही है ओके अब हिंदी में बात करते हैं पर वर्ड्स मिक्स रहेंगे पिछले काफी साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मुझे थोड़ा चैलेंज आता है कुछ वर्ड्स को पिक करने में अदरवाइज हिंदी में बात करेंगे मिक्स करके बात करेंगे हिंदी इंग्लिश पंजाबी ऑल गुड तो प्रीटी मच आई एम श्योर आप सब समझते हैं इस बात को क्योंकि मैडम ने प्रिंसिपल मैम ने सबने इंग्लिश में बात की तो मुझे भी लगा इसी फ्लो में बात करते हैं ठीक है ये थोड़ा सा मेरे बारे में मैडम ने बता ही दिया है पर मेरी फैमिली है जो आप सब फोटो दे सकते हैं माई वाइफ माई डॉटर एंड माई सन and the whole business I do under the name of my son actually. His name is Vivan and he's a really courageous boy. Like he plays soccer, playing very well. Okay. So my goal to change your life. अब वो बात है मेरे पास मैजिक तो है नहीं कि चेंज करूं आपकी लाइफ पर चेंज कैसे चेंज आप लोग करोगे दुनिया में कुछ भी दो चीजें होती हैं वो दो तरीके होती है इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बट यू कैन चेंज दैट पर इंटरनल एनवायरनमेंट को आप चेंज कर सकते हो लास्ट में एक स्लाइड उसको मैं स्टार्टिंग में शेयर करता हूँ व्हाट गोज इन योर माइंड जो आपके दिमाग में जाता है वो आपकी लाइफ क्रिएट करती है वो कैसे होता है लेट्स शेयर अबाउट दैट तो सबसे पहले जब भी आप मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे कहीं और सुनोगे जब भी मैंने किया है तो मेरे 5 जो रिग्रेट्स हैं ये सबसे पहले डिस्कस करता हूँ टू ब्रिंग इन अवेयरनेस टू नो दैट कि लाइफ के एंड में जाना सबको है नो डाउट पर एक मोमेंट ऐसा होता है जब आदमी कुछ नहीं कुछ सोच रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक इन द लाइफ कि काश मैं ये कर दिया होता तो एक नर्स है उन्होंने बुक लिखी है और ऑस्ट्रेलिया में ही वो नर्स काफी फेमस है उनकी बुक उस बुक में उन्होंने ये 5 बिगेस्ट रिग्रेट मिले उनको क्योंकि यहाँ पर ओल्ड एज होम होते हैं एक पर्टिकुलर कुछ एरिया ऐसा होता है कुछ बहुत ही एज जो जिनका लाइफ का स्पेन थोड़ा ही बचा होता है उन लोगों के साथ वो काम करती है फिगर आउट दिस 5 रिग्रेट्स तो मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ तो आप पढ़ सकते हो ग्रेट आई नो बस कुछ लोग शायद ड्राइव कर रहे हैं फोकस नहीं कर रहा रीड फॉर देम आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ नॉट द लाइफ फॉर अदर्स दिस इज द फर्स्ट और आज का सबसे बड़ा टॉपिक यही रहेगा अपने आप से ट्रू रहना वाला आई विश आई हैड वर्क सो हार्ड ओके वो जो है अभी लोग कुछ काम कर रहे हैं कुछ लोग आप लोग प्लान कर रहे हो काम करने के लिए उनके लिए भी है I wish I had the courage to express my feelings. This is another biggest regret. मैं ज्यादातर लोगों से बात करता हूँ. Even yesterday I'm talking to one of my clients as well. तो उसकी एक hidden expression था जो उसे पता भी नहीं था कि है and that hidden expression उसको अभी बहुत कर रहा था. He's around 43 around. पर उसका expression 14-15 साल पहले उसने somehow अंदर express कर दिया. I was dealing with him and I come to know about that. I wish I had stayed in touch with my friends. ये सबसे बड़ी चीज होती है जैसे जैसे आप ग्रो करते हो बिजनेस में घुसते हो जॉब करते हो तो ये एक रिग्रेट रहता है कि काश मैं अपने कॉलेज के या फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहता I wish that I had let myself to be happier. The great thing is that पहली और आखिरी 2 रिग्रेट्स को प्लीज कीप इन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फाउंडेशन तैयार करती है आपके लाइफ के लिए क्योंकि रिग्रेट एक ऐसी चीज है जिसको रिवर्स नहीं कर सकता इंसान
उससे लर्न कर सकता है पर रिवर्स नहीं कर सकता, तो हम रिग्रेट में क्यों जाए? व्हाई नॉट टेक द चार्ज राइट नाउ? अभी से, आज से अपनी गाड़ी खुद चलाएं। बाद में यार काश मैं उस रोड पे चला जाता, वो टर्न ले लेता, तो मेरा एंड अप कहीं और होता जिंदगी का, तो उसका चार्ज हम खुद लेते हैं, क्यों ना लें? तो मेरा फोकस क्या हुआ कि आप सभी जो भी सुन रहा है, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, एवरी सिंगल पर्सन, आई हैव ओनली इंटेंशन, ओनली वन इंटेंशन, कि आपकी जो ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो रही है, हर कोई ग्रो कर रहा है, नो डाउट। ग्रोथ के लिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि एक मोमेंट आता है, वी ग्रोइंग एवरी सिंगल डे, पर हमें पता नहीं होता। एज के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो पता है, बट नॉलेज के हिसाब से भी ग्रो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस में भी ग्रो कर रहे हैं। बट जो ग्रोथ होती है बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में, अगर इंटेंशन के साथ की जाए, तो वो ग्रोथ आपकी बहुत अलग होती है। दैट कुड बी लाइक दिस, ऑटोमेटिकली हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, लव द नेचर, ओके, पर एक इंटेंशन के साथ करे तो रैपिड एक्सपोनेंशियल, जिसको ग्रोथ कहते हैं, एक एक्सप्लोड करे, इस तरह की ग्रोथ होती है, और उसका चार्ज आपके पास होता है। तो दैट्स माय होल इंटेंशन टू ब्रिंग योर अटेंशन टुडे, कि आप अपनी ग्रोथ का चार्ज लो, खुद अपने ड्राइव करो अपनी गाड़ी को, एंड मेक इट शो ड्राइव द राइट वे विद फुल स्पीड इन अ वे कि आप अच्छे फ्रूट्स ले इसके लाइफ में। तो पर अभी जो 1.5 घंटा बात करने वाला हूँ, वो कुछ ऐसा है कि जैसे होज पाइप से आप पानी पी रहे हो। That's why I asked you before कि सीट बेल्ट पे टाइट करके बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, और इस इंटेंशन के साथ बैठिए कि जो आज नॉलेज आप ग्रैब करेंगे, सीखेंगे, वो किसी और के साथ शेयर करनी है। जब हम देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, तो सबसे ज्यादा रिटेंशन जो होती है ब्रेन में, सबसे ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा सेंसेशन आपकी इन्वॉल्व होती है कुछ भी सीखने में, उतनी ज्यादा उसकी रिटेंशन पावर रहती है, स्टे लॉन्गर एज वेल। तो दैट्स द रीजन, बिकॉज अभी मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरा काफी लंबा प्रोसेस होता है इसका, पर वो मैं कंसाइज करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई नो यू ऑल ग्रोइंग, यू ऑल स्टूडेंट्स पेइंग अटेंशन, स्टडिंग एवरी डे, सो यू कैन पे मच बेटर अटेंशन देन अदर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आई एम श्योर दैट। सो बहुत सारे लोग हैं, आई नो दैट, बहुत सारे लोग हैं जो बात करने वाले ना, और कुछ भी करने वाले उसके बारे में नहीं, मुझे तो सब पता है। Knowing something, जैसे मैडम से भी बात हो रही थी, knowing something and not doing that is almost not knowing actually। सबसे बड़ा कर्स है आज के टाइम में। आप कहते हैं ना कि ज्ञान मत दे, ज्ञान देने वाली जो बात है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है, कि क्या है, नॉलेज का कमी नहीं है। There is no challenge to having knowledge nowadays, challenge in the conduct especially। तो उसके लिए क्या होता है कि रिमाइंडर देने की जरूरत है। एवरीबडी नीड रिमाइंडर फॉर टाइम टू टाइम। जैसे ग्रेट गाय इज अ वेरी ग्रेट गाय, पीपल नीड टू बी रिमाइंडर मोर फॉर देन दे नीड टू बी इंस्ट्रक्ट इट। व्हाट दैट मीन, इट मीन्स कि आप सबके पास नॉलेज है, पर उस नॉलेज को रिमाइंड करवाने की जरूरत होती है, ना कि कुछ नई चीज सिखाने की जरूरत है। तो टुडे little bit I'm going to work that as well, little instruction, more reminding, because you have all the potentials। और pretty much आप सब हिंदी समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सबको ये भी पता है कि हमें हनुमान जी के बारे में सबने सुना है, पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो हनुमान जी के बारे में थोड़ा उन्हीं के साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि हनुमान जी के बारे में आप सबको पता होगा कि उन्हें घोड़े की ताकत मिली थी, पर उन्हें पता नहीं था। व्हाट इट मीन्स कि उन्हें पता था, सब कॉन्शियसली उन्हें पता था कि उनके पास है, पर उनको याद ही नहीं था। तो उनको याद किन्होंने दिलाया? जामवंत जी ने। और इसके साथ एक चीज और बताता हूँ कि आप सबके पास उसी तरह की सबके पास पावर है। इन साइकोलॉजी वी बिलीव इन दैट कि हर किसी के पास, एवरी सिंगल पर्सन इज यूनिक, एवरी सिंगल पर्सन हैज ए सुपर पावर। वी बिलीव इन साइकोलॉजी लाइक दैट। और हम साइकोलॉजिस्ट करते क्या, बेसिकली वी टैप इन दैट कि जितने भी लोग हैं सबके पास जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, उसको कहते हैं जागृत करने में हेल्प करते हैं। वी टैप ऑन दैट सो दे कैन फील, दे ब्रिंग दैट पावर, द सुपर पावर, और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, एंड दे कैन बी आउटस्टैंडिंग। बिकॉज प्रेजेंट सिनेरियो में आउटस्टैंडिंग होना जरूरी है। जो किसी जमाने में आई एम डूइंग गुड, आजकल जो गुड करते हैं इट मींस दे आर इट बैड। जो वेरी गुड थे दे आर इन गुड पोजीशन, जो एक्सेप्शनल थे दे आर जस्ट ए गुड, जो ग्रेट थे जस्ट ए गुड एक्सेप्शनल। बट नाउडेज वी नीड पीपल हु आर आउटस्टैंडिंग। To become outstanding, you need to tap your own energy on your superpower। और उसके लिए रिमाइंडर की जरूरत है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। We born with that superpower। हर कोई अपनी सुपर पावर के साथ पैदा होता है, और उसको रिमाइंड, उसको टैप करना, उसको जानने की जरूरत है। Once you are aware about that, तो क्या है, you change everything। So, और आज की जो वर्ल्ड है, the new world, technology, digital world,
सो डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, जो माइंड है, ये 2000 साल पुराना है, जिसका जो सॉफ्टवेयर है उसी तरह का है, पर आजकल जो वर्ल्ड है बहुत क्विकली, सुपर क्विकली चेंज हो रहा है। थिंक अबाउट दैट कि जब पहली बार साइकिल बनी थी और आज ये जो सुपर कार्स बनी हुई हैं, इनके बीच में कितने साल का गैप था। थिंक अबाउट दैट, लगभग 200 साल लग गए उनको यहाँ तक पहुंचने के लिए। पर अब क्या है, अब जो पिछले 4 दिन पहले जो काम हुआ था पुराना हो चुका है। आई वाज इन ए मीटिंग वीक अगो, और एक बंदा है एआई गाई स्पेशलिस्ट है, वो साउथ इंडियन, आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो किसी ने चैट जीपीटी की बात की, कहते हैं चैट जीपीटी पुरानी बात हो चुकी है। आई वाज लुकिंग एट हिम, कहता पुरानी बात हो चुकी है, कुछ नया आ चुका है। व्हाट डू यू मीन? बोला वो 1 साल पुराना हो गया, डिजिटल वर्ल्ड में 1 साल में तो बस इट्स ओल्ड। सो न्यू वर्ल्ड मीन्स व्हाट, कि एवरी डे थिंग्स चेंजिंग, एवरी सिंगल डे। और हमारा जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर, जो इंसान का सॉफ्टवेयर 2000 पुराना साल है, तो कैसे कोप अप करेगा इस चीज से, कैसे इन चैलेंज को स्वीकार करेगा, हाउ टू डील विद दैट, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड है, हेल्प भी कर रहा है और आपको नुकसान भी कर रहा है। तो जो नुकसान कर रहा है वो उसी तरह से जैसे हनुमान जी को एक कर्ष मिला हुआ था, श्राप मिला हुआ था कि ही कांट रिमेम्बर, तो उसी तरह से आज के दिन जो हमें टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में आ रही है ना, वो कैसे हमारे लिए भी बनी हुई है। हमारा जो मॉडल है ये 2000 साल पुराना है, ऑपरेट करते हैं नए के साथ, तो ये ऑब्सलीट हो रखा है, तो नीड टू अपग्रेड दिस। अभी आप जो भी जितने भी एप्पल का डिवाइस यूज करते होंगे, तो स्पेशली एप्पल जो फोन यूज कर रहे हो, पिछले हफ्ते आप सबके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, है ना? तो जिसने अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद देखा होगा कि कुछ चीजें चेंज हो गई है, तो चेंज हो गई। अब वही एप्पल का डिवाइस जो है, बिकॉज मैं एप्पल के डिवाइस का देखा था इसलिए बता रहा हूँ, तो आपके अगर किसी के फादर के पास भी एप्पल का डिवाइस है और बेटे के पास भी है और बेटे का बेटा है उसके पास भी है, तो 3 जनरेशन के पास सपोज एप्पल का डिवाइस है। अब तीनों जनरेशन को सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा और तीनों जनरेशन को सॉफ्टवेयर सीखना भी पड़ेगा, बिकॉज दे चेंज द फीचर्स एवरी सिंगल टाइम, दे डू समथिंग डिफरेंट। तो राइट नाउ न्यू वर्ल्ड में कोई भी जनरेशन का गैप नहीं है नॉलेज के लिए, कोई भी जनरेशन की ऐसी चीज नहीं कि नहीं वो एक्सपीरियंस उनको जल्दी आता होगा, नो, नथिंग लाइक दैट। सो दिस इज ए गुड एंड बैड इन वन वे। So you need to upgrade this. Learning is going to be happen that, and this software need to deal. इस सॉफ्टवेयर से कैसे डील करना है, that's important. So the growth जो होती है डे टू डे, मैं न्यू वर्ल्ड के साथ और पुराने वर्ल्ड के साथ शेयर कर रहा हूँ। लीनियर ग्रोथ जो होती है, जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस की फैमिली से बिलोंग करते हैं, they pretty much know about this easily। पर आप लोग सभी देखते हैं, अपनी सराउंडिंग में देखोगे आप कि जो काम पहले होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल में ऐसे करके होते थे, अब क्या होते हैं 1 2 4 6 8 16 32 ऐसे करके होते हैं। तो व्हाट इज दैट मीन? क्योंकि जैसे मैंने अभी बात की आपसे कि जिसने ये कहा मेरे को चैट जीपीटी इज ओल्ड, साल पहले हुआ था, और उससे पहले क्या 2003-4 में जो फोन आते थे, फिर क्या इतने बड़े ब्रिक्स आते थे, देन इट टुक लॉन्ग टाइम, 2007-8 में थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, तो क्या दैट वाज ए लीनियर ग्रोथ। पर अब क्या है, अब है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ है इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को इस तरह से इतनी स्पीड से ग्रो कर सकते हैं और क्या चीज है जो कि आपको करने की। लुक एट दिस, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ये पहला मदरबोर्ड है जब एप्पल ने यूज किया था 60s में ना, उस समय की बात है। उस समय जो उस फोन में जितनी पावर, जिस मदरबोर्ड में जो पावर थी, आजकल जो आपके पास एप्पल का डिवाइस फोन है उसके अंदर कोई भी छोटी सा, आई एम नॉट टेक्निकल पर्सन अलॉट, पर आपकी फिंगर टिप के ऊपर वो एक डिवाइस है, कोई चिप कह सकते हैं उसको, उसमें इतनी पावर होती है जितनी उस समय होती थी। सेम थिंग रिमाइंडिंग मी, जब पहली बार जो स्पेस में 1960s में स्पेस में जब स्पेस में गए थे, रॉकेट गया था, तो उस रॉकेट में जितनी एनर्जी, जितनी पावर, जितनी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वो आज के दिन आपकी पॉकेट में रहती है, दिस इक्वल पावर। अब उस फोन में आप 1000 सॉन्ग्स रखते हो, पिक्चर्स रखते हो, टीवीज में आते हैं, नॉट जीबीज एनीमोर, टीवीज में स्टोरेज होती है। तो व्हाट इट शोज, जो कैलकुलेशन उस समय 1 मिनट में 400 के करीबन कैलकुलेशंस होती थी, एक सेकंड में, सॉरी, अब क्या है कि मिलियंस में कैलकुलेशन होती हैं आपके डिवाइसेस के थ्रू। तो दैट मच पावर यू आर होल्डिंग राइट नाउ, और उस पावर का यूज और मिसयूज दोनों हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक डिवाइस बना था, सुपर कंप्यूटर जिसको कहते हैं, इट्स प्रीटी मच इज फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, IBM का।
तो उस समय ये पूरे सिस्टम को चलाता था। पर आजकल जो PS5 जो एक बच्चा गेमिंग प्रोग्राम करता है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। व्हाट इट मीन कि आपके पास आपके घर में जो डिवाइसेस हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, मोर पावरफुल। जो आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले जो चीजें होती थी अब आपके घर में होती हैं, उतनी पावर है आपके पास। यू कैन कंट्रोल द थिंग्स इजीली। दैट पावर यू हैव राइट नाउ। जो न्यू वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ वो ये है। तो दिस डिवाइसेस कैन हेल्प यू। अब ये क्या है कि जो डिवाइसेस हैं ये आपको फायदा भी करती हैं, नुकसान भी करती हैं। राइट नाउ इस डिवाइस की वजह से मैं आप सबसे जुड़ा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न बेस्ड हूँ, पर मैं अभी क्या है आपके साथ कुरुक्षेत्र में भी बात कर रहा हूँ और कुछ से बाहर भी कुछ लोग जुड़े हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। और मैडम है कि हिसार से हैं, शायद भिवानी से हैं कुछ, आई नो फ्यू पीपल दे, उनसे बात कर रहा हूँ। इवन आप सब भी अपने अपने घर में बैठे हैं, वहां से बात कर रहे हैं। संडे के दिन स्पेशली थैंक्स टू ज्वाइनिंग ऑन संडे। बेसिकली संडे के दिन आप सब ज्वाइन कर रखे हैं। इसमें क्यों? पावर है किसमें? इस डिवाइस में है। और ड्यूरिंग द कोविड आप सबने देखा होगा कि इस डिवाइस की वजह से वी कनेक्टेड, वी अपग्रेड, वी स्टे इन टच, वी फील सेफ एज वेल। और डिवाइस की वजह से सबने अपने बिजनेस भी किया, आप सबने अपनी स्टडीज भी की, एवरीथिंग। और अब क्या है, इस डिवाइस की वजह से आप डे टू डे लाइफ में अपग्रेड भी करते हो अपने आप को। इवन दिस डिवाइस इज गिविंग बिग चैलेंजेस टू द ऑफलाइन बिजनेसेस हैं जो आज के दिन, जैसे कि एयरलाइन का सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है किसके साथ है? जिस डिवाइस पे आप और मैं बात करें, गूगल मीट्स और जूम के साथ। क्योंकि जो बिजनेस वाले जो लोग थे वो फ्लाई नहीं करते, वो मीटिंग्स अपनी यहीं करते हैं। तो जो चैलेंज आ रहा है अब एयरलाइंस के साथ, तो द पावर इज देयर। पर इस पावर के साथ साथ क्या होता है कि चैलेंज भी आते हैं। तो अब क्या है, जो स्किल्स होती थी हमारी, ठीक है ना, और जो प्रोग्रेस होती थी उसमें जो गैप है उसको फिल करना है। क्योंकि पहले क्या था, स्किल और प्रोग्रेस दोनों मैच करती थी जब लीनियर प्रोग्रेस होती थी। अब क्या हो रहा है कि अगर स्किल्स को हम प्रॉपर मैच नहीं करते तो चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। दोस फ्यू पीपल कंट्रोल द होल वर्ल्ड। देन आप अपने आप को ऑब्सोलीट महसूस करते हैं इफ यू नॉट गोइंग विद दैट प्रोग्रेस। तो क्या है कि पिछड़े हुए महसूस करते हैं। प्रीटी मच कुछ लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं आफ्टर पर्टिकुलर एज कि नहीं यार छोड़ो ना, बच्चों का काम है। और कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा काम जो है आज के दिन टू ब्रिंग इन योर अवेयरनेस कि हाउ यू कैन मिनिमाइज दिस गैप। ओके, जो गैप है आपका, जो ग्रोथ गैप है, सक्सेस का जो गैप है, अल्टीमेटली सक्सेस का गैप क्या होता था प्रीटी मच लॉन्ग टाइम अगो। आप सबने भी देखा होगा कि आज से जो यंग बच्चे हैं वो तो नहीं जानते, जो आफ्टर 2000 बोर्न है, प्रीटी मच बिफोर दैट, कि सबसे बड़ा गैप होता था नॉलेज का। और नॉलेज गेन करने के लिए पीपल ट्रैवल, दे यूज्ड टू गो इन डिफरेंट कॉलेज, इन द यूनिवर्सिटीज, कहीं कहीं अलग अलग जगह जाते थे, बहुत अलग अलग। इवन आई यूज्ड टू गो इन डिफरेंट हॉस्टल्स, मैं हॉस्टल में ज्यादा रहा हूँ। तो किस लिए? व्हाट वाज द पर्पस? टू गेट द नॉलेज। नॉलेज है वो इस सक्सेस गैप को फिल करती थी। पर अब ऐसा नहीं है। क्यों? उस समय वो नॉलेज को गैप करने के लिए होती थी लाइब्रेरीज, आपकी हर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में होती थी लाइब्रेरी जितनी। अब नॉलेज कहाँ है? आपके हाथ में। धीरूभाई अंबानी कहते हैं ना, दुनिया मुट्ठी में। तो नाउ द नॉलेज इन योर हैंड बेसिकली राइट नाउ एज वेल। तो अब ये नॉलेज का गैप नहीं है, अब गैप क्या है? कंडक्ट का है। यू नो व्हाट टू डू बेसिकली, एवरीबडी नोज दैट। अभी मैंने कहा नहीं, ज्ञान देना बहुत ईजी है। यू नो, अगर नहीं पता तो क्या है, दूसरा डिवाइस है, वो क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको नहीं पता तो उस पर जाओ और सर्च करो, वो उसको कहते हैं हम गूगल। प्रीटी मच यू नो ऑल दैट। इवन माय सन, ही इज लाइक नॉट इवन 10 येट, पर उसने 2 साल पहले पूरा एक पीपीटी बनाया बैठ के कि हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट, पूरा हाउ टू बी हैव अ गुड फ्रेंड्स, पूरा पीपीटी बनाया और अपने दोस्त को प्रेजेंट किया। 2 साल की पुरानी बात है, वैसे ही वाज अ 7 ईयर ओल्ड। तो क्या है कि उसने कहां से किया? सर्च, गूगल से सर्च करके पावर पॉइंट बना के तो से बात कर रहा है और वो जूम पे रिकॉर्ड कर रहा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन एक्चुअली। सो नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज यू कैन ग्रैब दैट इफ समवन इज से कि मुझे नहीं पता, इसमें दे आर इग्नोरेंट। और दूसरी ये चीज बीमारी है इनेप्ट की, जिसके वी नो एंड वी डोंट डू थिंग्स। लेट्स फिगर आउट हाउ टू डू दैट। नॉलेज को की तो कमी है नहीं, तो कमी कहाँ है? कंडक्ट में। और कंडक्ट में सबसे ज्यादा जो चैलेंज आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं? बिटवीन योर थिंकिंग एंड एक्ट, राइट? एक्ट जो है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कहां पर है? दैट्स बिटवीन ईयर्स। आपके दोनों कानों के बीच में जो दिमाग है, जो 2.5 इंच का जो एरिया है,
सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ है. दैट्स योर कैन कॉल इज माइंड सेट एज वेल. और इस ब्रेन में जो कंडक्ट का प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. सो वो कंडक्ट में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे मैंने कहा ब्रेन इमोशन चेंज. We are the people right now with not lacking any kind of intellectual knowledge. Knowledge की कमी नहीं है, सभी स्मार्ट हैं, everybody knows, स्मार्टफोन रखते हैं, they know pretty much intelligence. Intelligence की कोई कमी नहीं है आज के दिन. आज के दिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इमोशन से. People are pretty much emotionally immature. Lots of people, I know that, emotionally immature. Even you see in your surrounding, कैसे रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पे, कैसे बात करते हैं. इवन दे नॉट एबल टू मेक ए क्विक डिसीजन, दे क्विक रिएक्ट. रिएक्शन कम ऑटोमेटिकली एंड द रीजन बिहाइंड द सबकॉन्शियस, आई शेयर अबाउट दैट टू, कि वो इमोशनली इमेच्योर है, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है उस पे आपके इमोशन हैवी होते हैं एंड यू कांट थिंक बेटर. तो दैट्स कॉल्ड इमोशनल इमेच्योरिटी. तो ये चैलेंज सबसे ज्यादा है इमोशनल इमेच्योरिटी का. टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब इन गैप को नॉलेज दे, नो वी कांट मैनेज एनी मोर टाइम. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि नॉलेज की कमी नहीं है, किस चीज की कमी है, कंडक्ट की. इंटेलिजेंस की कमी किस चीज की कमी है, थॉट्स एवरीडे उनसे नेगेटिव होता है. तो अपने आप से जो चैलेंज है, अपने आप जो स्ट्रगल है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल है इंसान का, ना कि आउट इन द वर्ल्ड. आउट इन द वर्ल्ड इज मच सेफर लाइफ. जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो लाइफ थी वर्ल्ड में, उससे ज्यादा सेफ लाइफ अब है कंपैरेटिवली. देयर नो वर्ल्ड वॉर, देयर इज नॉट दैट मच क्राइम्स दैट मच बिफोर यूज्ड टू हैव, नो दैट मच काइंड ऑफ एक्सीडेंट और एयरप्लेन क्रैश यूज्ड टू हैव बिफोर. सेफ वर्ल्ड है, पर सबसे ज्यादा डेंजरस और इनसिक्योर इन सेफ वर्ल्ड जो हमारे अंदर है, जो हमारा ये वर्ल्ड है, वो ज्यादा है. सो अब क्या हो रहा है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को जो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ पावर जो बनाना है, उसमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, you need aptitude, not apps, because you all holding the smart devices, so people think, oh, if I got a better app, so I'm going to be more smarter. No, you need to be better aptitude. The way you think, the way you see the things, that's more important than better app. App is a होता है ना कि जैसे एयर फ्री ऐप, it doesn't work then. अगर कोई एयर फ्री ऐप है वो काम नहीं करता है. तो इन द सेम वे आपको अपग्रेड करना अपना एप्टीट्यूड, खुद का एप्टीट्यूड. ओके, सो लेट्स टॉक. दिस इज, आई कीप दिस स्लाइड वेरी प्लेन. द रीजन बिहाइंड दैट कि आई एम गोइंग टू शेयर मोर अबाउट इन दैट इज कि आप इसको बेटर लर्न कर सकें. आप सबको पता है कि जो इंसान है जो बाय बर्थ इज सो लेजी. कैसे? आप अपने सराउंडिंग में देखना, जो कुछ लोग पहले स्पोर्ट्स में होते थे, नाउ दे आर रिटायर्ड, और अब उनकी फिजिक को देखना, कोई भी देखो जिसको प्रीटी मच यू नो, मोर देन 90% पीपल, उनका फिजिक का जो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होगा. और अब तो ऐसी सिचुएशन है, एक दिन मैं जा रहा था तो शो द गाय कि वो गाड़ी में खुद बैठा है, ठीक है, समवन इज ड्राइविंग, अपने डॉग को वॉक करवाने के लिए, कुत्ते को वो करवा रहा है पर खुद गाड़ी में बैठा है. So that shows that how lazy we are. Human body is built like that. Human brain is built like that. We are lazy people. So हम जो लेजीनेस को खत्म करेंगे वो कैसे? To become more focused. अब फोकस में क्या चीज है कि देखो, you know your things to become master. आप अपनी मास्टरी करो, उसमें आउटकम निकालो, पर आप सिर्फ आउटकम और मास्टरी से काम नहीं चलता. You need to become insane focus. Whatever you do, whatever you decide. Okay? तो ये इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जब भी कोई भी इंसान अपना कोई भी टारगेट, कोई भी गोल सेट करता है, तो इंटरनल वो लेफ्ट साइड में जो मेरे रियल सुपरमैन दिखता है उस हिसाब से सोचता है, पर इंटरनल दे आर लाइक द अनदर सुपरमैन जो सो स्किनी, don't feel I can do something. Look at the person face, not feeling confident as well. That's your internal image basically. When people do anything, decide to do anything, they need to create the self-image first. But the image they have inside the mind, they have very weak image. Now let's talk about the pretty much this point. भी मैं बात करता हूँ बार बार कि जो हमारा brain है, it's divided in 3 parts
basically. जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, they pretty much know about the conscious mind, subconscious mind, okay, in the between the semi-conscious mind, we can say that. So, but today for the living language, I decided to share in that कि जो subconscious mind है, I call this robot mind. Robot means that automatically behave which we do. हम कुछ भी करते हैं अपने आप हो रहा है. बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे आप ब्रश करते हैं, शू पहनते हैं, ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ये क्या आपका रोबोट ऑटोमेटिक बिहेवियर बना हुआ है. उसी तरह से ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के फंक्शन होते हैं. आपकी हंगर है, थर्स्ट है, ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, जो पल्पिटेशन हो रही है, जितनी भी है, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक. वो आपका रोबोटिक ब्रेन है, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसका चंक 95% होता है. pretty much इनको साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट है, they pretty much know about that कि 95% of your body और माइंड इज ऑटोमेटिकली. और ये एक ऐसा ब्रेन है जिसका एक ही काम होता है, टू मेक यू सर्वाइव. क्योंकि ये ओल्ड 2000 ईयर अगो जो पैटर्न था उसी बेस पे बना, वही कोडिंग है दिमाग की इसकी. कुछ भी हो जाए, इज गोइंग टू मेक इट श्योर कि आप सेफ रहो. तो उसी सेफ्टी के चक्कर में हम आज से 2000 साल पुराने की बात करें तो क्या था कि जंगल में जाते थे, ठीक है ना, कोई जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल देखा, कुछ भी, दे फील स्केर्ड एक्चुअली. अब वही सिचुएशन को आप देखो, आप मूवी में देखते हो, ठीक है, मूवी में देख रहे हो, एंड यू नो दैट कि जस्ट स्क्रीन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू गेट स्केर्ड. आपको फियर की फीलिंग आती है, बॉडी चेंज होती है, रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, राइट. अब जंगल जो वो तो है नहीं, अब जंगल में जो वाइल्ड एनिमल होते थे वो अब क्या हो चुके हैं. सेम पैटर्न वही आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है. नाउ योर बॉस, आपके जो बॉसेस जो वर्किंग, या आपके कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं या कोई और रिलेटिव है, यू गेट स्केर्ड. टीचर हैं कुछ ऐसे, गेट स्केर्ड. और वो क्या है, आपका रोबोटिक ब्रेन टेकिंग दैट विद दैट स्केरी, एंड उसके हिसाब से रिएक्ट करता है. तो इट्स हेल्पिंग यू एंड हर्टिंग यू बेसिकली. रोबोटिक ब्रेन में अगर नेगेटिव बैड हैबिट्स हैं, वो अगर रोबोटिक माइंड ने अडॉप्ट कर रखे हैं, तो यू कैन टेक द सेम आउटकम. पर उसी चीज को आप इंटेलिजेंस के साथ कर चेंज. लेट्स टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट मोर. दूसरा ब्रेन आपका मंकी माइंड, दैट्स कॉल्ड इमोशनल ब्रेन. जैसे एक पर्टिकुलर आपके कहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम जो है आपको ब्रेन का, दैट्स इज अ मंकी ब्रेन, ठीक है ना. जो आपको सारे दिन कोई भी शाइनी सिंड्रोम जैसे कुछ भी नया दिखता है, वो क्या हो रहा है, ठीक है ना. तो जैसे कोई ट्रेलर आ रहा है मूवी के, उस न्यू मूवी ट्रेलर तो आपने देखा, उसने देखा, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, कुछ नया हो रहा है, कुछ और देखा है, ठीक है ना. लव एंड लस्ट एवरीथिंग कम फ्रॉम दिस माइंड एक्चुअली. व्हेन यू सी समवन यू फील डिफरेंट फीलिंग होता है. कुछ भी नया आ रहा है, किसी के जूते अच्छे दिख रहे हैं, किसी स्पेक्स देख रहे हैं, कुछ भी, तो आपका जो मंकी माइंड हो रहा है. सिमिलर वे व्हेन यू गॉट सम मैसेज इन योर फोन, तो जंप करता है, ठीक है ना, क्या हो रहा है. इट्स मोर क्यूरियस, इट डजंट स्टे एट वन प्लेस. दिस मंकी माइंड कीप रनिंग अराउंड एवरी डे. So that's the second challenge. The first is robotic behavior, जो robotic mind है वो 95%, and that this one. And then third I call it sage brain. The sage we can more intellectual, logical, the conscious frontal lobe जो हमारा जो thinking brain है, that's one is that. But that crazy part is that कि ये आपका सबसे मिनिमम है, और ये एक पायलट है जो सबको चलाता है, पर इसकी पावर जो है 95-97 की इसमें कम पड़ जाती है. So now let's think about that. 95% ये है, 5% ये दोनों मिलके हैं. तो पर 5% का जो में इसमें जो मंकी माइंड है उसमें 95% काम करता है. It seems like that कि आप स्टेज पे काम कर रहे हैं, आपका एक बंदा, उसके पीछे डायरेक्ट कौन कर रहा है आपको. अगर कोई एक्टर है वो स्टेज पे काम कर रहा है, उसको डायरेक्ट करता है आपका 95%. तो मंकी ब्रेन को ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स रिएक्शन जो करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में, वो 95% और 5% आपका मंकी माइंड में लगभग सेज और ये दोनों मिलके 2% के करीबन आपका सेज माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, मिक्स रहता है. दिस गुड एंड बैड एक्चुअली. और मंकी माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. सो हो क्या रहा है कि मंकी माइंड सबसे ज्यादा आज के सिनेरियो में, न्यू वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, आपका मंकी माइंड है. तो जो चैलेंज फोकस की बात कर रहे थे, तो फोकस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए हमें. तो सबसे पहले हमको चीजों को काटना होता है. इट्स लाइक ए बुश, है ना. कोई बुश है, अगर आप वो स्ट्रेट रखना चाहते हैं, यू नीड टू कट द सम, तो बेकार की चीजें, तो ना व्हाट यू कॉल इन खरपतवार, है ना, जो वीड है उसको काटते हैं साइड में से, जो बेकार के, है ना. तो वैसे ही जो आज के दिन इंसान के सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मंकी माइंड के लिए. और लेट्स से अबाउट दिस रादर देन टॉकिंग अबाउट दैट. You don't manage time, you manage emotions. That's about the learning about that. कि आपका जो मंकी माइंड है उसमें आप क्या करते हैं,
उसमें आप जो मंकी माइंड है वो आपको जंप करवाता रहता है. एज सुन एज यू गेट द एनी ईमेल, कोई मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन ऑन है, आपका डिवाइस है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो आपका जो मंकी माइंड है वो जंप करता है ना. मंकी माइंड जो है इधर उधर भटकाता है आपको, इट्स नेवर अलाउड यू फोकस. और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली काम करता है. अब जो कॉन्शियस माइंड है उस पर ये ओवर पावर हो जाते हैं. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. नाउ यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. Pretty much you all can feel that. Check your surrounding, check your friends, check your family members, check yourself कि आपका सबसे ज्यादा फोकस कहाँ जा रहा है आज के दिन. Where you paying the attention? क्या चीज है जो सबसे ज्यादा आपकी अटेंशन लेती है. मार्केटिंग में भी ये चीज होती है कि दे वांट टू गेट यू ग्रैब योर अटेंशन. आप इंस्टा चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, ठीक है ना, ट्विटर को क्या बोलते हैं, एक्स, वो चलाते हो, व्हाटएवर. द पॉइंट इज दिस, एवरी सिंगल पर्सन वांट्स योर अटेंशन. जितने भी इनके ओनर्स हैं, दे वांट योर अटेंशन. दे आर नॉट फ्री, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ योर अटेंशन बेसिकली. तो वो सब होता है. और उसके लिए क्या चाहिए, यू नीड टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट. आप इंटेलिजेंट हो, बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट. वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग विद द सेज ब्रेन, द कॉन्शियस ब्रेन, एंड यू कैन, क्या कहते हैं ना, आप बंदर को पिंजरे में बंद कर सकते हो, या यू रेन लाइक हार्नेस डाल सकते हो उसको. तो विद द कॉन्शियस अवेयरनेस यू कैन पुट द रेंज. ओके, ये स्टोरी आप सबको दिमाग में आ गई होगी एज सुन एज ये देखा आपने कि कछुआ और खरगोश की, है ना. खरगोश हारा क्यों था, याद करो. बचपन में सबने स्टोरी आपने पढ़ी थी, सबने. खरगोश ने चैलेंज किया कछुए को, दोनों ने रेस शुरू करी. तो चैलेंज क्या आता था, सबसे पहले चैलेंज क्या आया, ठीक है. इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो बहुत कुछ मैं शेयर कर सकता हूँ. तो पॉइंट इज दिस कि खरगोश ने, ही वाज वेरी गुड रनिंग. फिर हुआ क्या, इमोशनली क्या, आई कैन हैंडल हिम, आने दो उसको, मैं थोड़ा नैप ले लेता हूँ. हुआ, डाइवर्ट हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ. जो फोकस था, मेन जो आउटकम था, उससे डिस्ट्रैक्ट हुआ और कट ए नैप, और फिर खरगोश जीत गया. तो एक चीज तो एक डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो उसकी वजह से. दूसरी चीज थी कि जो खरगोश सो चुका डिस्ट्रैक्शन की वजह से, और जो टोटल क्या, कछुआ क्यों जीता, बिकॉज ही वाज कंसिस्टेंट. तो राइट नाउ इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, दिस इज द बिग चैलेंज एक्चुअली. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट कंसिस्टेंट. दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद देयर ओन कमिटमेंट. जो कमिट करते हैं कंसिस्टेंट नहीं करते, एंड दे फॉल. आज के टाइम में I can challenge anybody. Honestly, I can challenge anybody in the world. कोई भी किसी चीज में good है, give me proper time, I can beat the person. The reason behind that, if I decide something, I do with consistency. Those know me personally, I'm very good in consistency. I'm not good in so many things. I know very well that as well. और जैसे मैडम ने कहा कि I just study only one subject in my life. तो I'm very consistent with it. आप भी कर सकते हो. कोई भी किसी को भी बीट कर सकता है किसी भी एरिया में. डजंट मैटर वो एजुकेशन है, या स्पोर्ट्स है, या हेल्थ से रिलेटेड है. एनीथिंग यू कैन बीट एनीवन इफ यू गॉट दिस फार्मूला, कंसिस्टेंट विद योर कमिटमेंट. वंस यू आर कंसिस्टेंट, नो वन कैन बीट यू. बट नाउ द चैलेंज इज व्हाट, कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. जो एक अटेंशन को मेंटेन करके जो फोकस बिल्ड करते हैं, वो नहीं हो पाता है. बिकॉज ऑफ दिस, जो जितने भी शाइनी सिंड्रोम्स आ रहे हैं ना, जो शाइनी नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप आ रहा है, फेसबुक मैसेज, ऑल दिस स्टफ, क्या कहते हैं, चेंज करते हैं. अभी जब आप हर साल अपना डिसाइड करते हो गोल, है ना, जो भी गोल डिसाइड करते हो, साल में क्या, जब सेमेस्टर भी शुरू करते हो आप, तब भी डिसाइड करते हो. सेमेस्टर छोड़ो, आप अपनी हेल्थ को लेके कुछ डिसाइड कर रहे हो, व्हाटएवर यू डिसाइड, यू गॉट इंटेंशन कि मुझे 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ये कुछ करना है. आप में से बहुत ऐसे होंगे, कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा होगा, या कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, या कोई सिविल्स की तैयारी कर रहा होगा. समवन मस्ट बी डूइंग समथिंग, और दे गॉट आइडिया, उनके दिमाग में इंटेंशन है कि मुझे करना है, और आउटकम में और उनके इंटेंशन में जो चीज होती है, दैट्स वी कॉल इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड शिट हैपेंस. यू नो, बकवास चीजें हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाता है इंसान, और द शिट इज लाइक दैट. ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, कि जो आपकी इंटेंशन और एक आउटकम में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आपका. तो अभी जो बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टेक्निक्स लेटर ऑन, कि आपकी इंटेंशन और आउटकम के बीच में जो गैप है, उसको मिनिमम कैसे करें, और जो इस तरह की बेकार की जो डाइवर्ट करती चीजें आपके, जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो ना हो.
Once we understand the problem, we can find the solution easily. That's pretty much sure. So अब क्या है कि एडिक्शन इतना हो चुका है. Look at this picture. I find somewhere I'm pretty much amazed कि क्या दिखा रहे हैं कि एडिक्शन के. I work 6 years in addiction, so I love this picture कि ये क्या हो रहा है. कि एडिक्शन में होता क्या है बेसिकली. एडिक्शन में भी like that change the neurochemical. Okay, आपके ब्रेन के न्यूरोकेमिकल चेंज करते हैं एडिक्शन एंड यू बिकम एडिक्ट फॉर दैट. कुकिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एडिक्शन. तो सिमिलर वे जो आज के डिवाइस का जो एडिक्शन है सबसे ज्यादा एडिक्शन हो रखा है कि जो आप जैसे ही एडिक्शन डिवाइस कोई भी यूज करते हैं, व्हाट हैपन इफ यू ऑन द फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट हैपन दैट इट जनरेट्स something chemical is called dopamine in your brain. Dopamine is like that chemical is called happy kind of chemical that release in your mind and you want to have it, but that's having dopamine in your brain is a dysfunctional क्योंकि वो आपको मेन टास्क से डाइवर्ट करता है. वहां you feel good in that for a moment but it's not helpful. So वो एक एडिक्शन है इस चीज का सबसे ज्यादा. और once you don't find डिवाइस नहीं मिलता तो एड्रेनलिन रश करता है आपका. आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसने नोटिस किया होगा, अगर आप घर से कॉलेज के लिए निकले हो, जो मैडम हैं सर हैं, और आपका फोन भूल गए हो, यू गोइंग टू मेक इट श्योर किसी न किसी तरह फोन आपके पास आ जाए. या तो अगर रॉन्ग यू टर्न भी लेना पड़ेगा, रॉन्ग यू टर्न लोगे या किसी को बोलोगे रुकोगे और लेट भी पहुंचने को तैयार हो, जस्ट टू ग्रैब योर फोन. अगर आप बच्चे को कहीं ले जाना है और भूल गए हो तो बच्चे को वापस लेने नहीं जाता इंसान से, फोन को लेने जाता है. So that much addiction is has. और इसके पीछे साइकोलॉजिकल बहुत सारे रीजन. इज फुलफिल योर फीलिंग ऑफ द कंट्रोल, बेसिकली फुलफिल द नीड ऑफ एडवेंचर एक्चुअली. वो अगर इसके बारे में बात करें मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके देखना, लास्ट वीक आई अपलोड एक वीडियो कि हाउ द साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल्ड बाय दिस एडिक्शंस. दैट से कम जैसे सिलिकॉन वैली से है, दैट गाय शेयर दैट कि जो पिछले 40 साल में जो एडिक्शन नहीं हुआ तो आने वाले 40 साल में होने वाला है. The world will become more addictive in the next 40 years than it did in the last 40 years. Because they did pretty much studies about this and they figure the addiction means what? It's not only drug addiction, it's a more addiction. The chemical neural जो आपके brain में create करते हैं, that's addiction for something. And nowadays the addiction towards the digital world. तो वो addiction सबसे ज्यादा है. और आप surprise करोगे if I share this one, और the parents as well, it seems like कि उनको लगता है कि नहीं हमें तो कोई एडिक्शन नहीं है. नहीं, look at the kids, especially we have lots of teenager over here. Teenager आप अपने आप में देखो कि कितने ऐसे हैं आप जो इस चीज को मानते हैं कि हाँ ऐसा हमारे साथ हो रहा है. They doing like that. किसी न किसी तरह कोई ना कोई मैसेज करते हैं within a month 4,000 texts. Think about that. Think कितना डाइवर्ट हो रहे हो. आपका जो मंकी ब्रेन है कहाँ जम मार रहा है. फिर कहते हैं हमारा फोकस नहीं बन रहा. How you can make a focus then? How you can build a focus then? Because that's the reason. And look at this now. When you see that people they are driving, 53% report saying the email while driving. अभी इंडिया का तो मुझे याद नहीं, पर यहाँ पर अभी एक नया रूल आ रखा है ऑस्ट्रेलिया में. They put the very sensitive cameras everywhere कि while driving someone touch the phone कि उसको फाइन आता है और क्यों पॉइंट भी लूज करते हैं. We have only 12 points to drive a car in Australia. तो क्या है कि फाइन भी आता है, $500 का फाइन आता है. I think 3 पॉइंट भी लूज. कितने सारे लोग हैं. एंड बड़ी बीच में हमने भी कई बार ऐसी चीजें की हैं. That's another thing that I'm sharing all the surveys which has been done. कुछ स्टडी हुई है उनके ऊपर बता रहा हूँ कि 40 टाइम पर आवर. ये देखो ईमेल, जो आप में से कुछ हैं जो काम करते हैं, वर्क कर रहे हैं, यू वर्किंग इन एनी कॉर्पोरेट या किसी के पेरेंट्स कॉर्पोरेट में करते हैं, यू कैन आस्क देम कि व्हाट्स हैपनिंग विद दैट. दैट्स द ग्रेटेस्ट रीजन टू नॉट टू टच एनीबॉडी फोन एज वेल. इस सर्वे हुआ उसमें कि 75% पीपल एडमिट दे कैन टेक देयर फोन इन द बाथरूम. 75 they admit, and around 35% people said कि वो हरदम लेके जाते हैं. And look at this, 69% cannot sleep without checking their inbox. सोने से पहले ही चेक करेंगे. You know, midnight में भी 43% उठते हैं. Even I got surprised sometime कि जब मेरे टाइम जोन में डिफरेंस है तो वहाँ इंडिया में जैसे हैं कि वो रात के वहाँ 2 बजे होते हैं, people reply to me. I'm really surprised कि how they can reply. They wake up in the midnight and they reply. तो दिस इज द चैलेंज कि आपकी जो रूटीन है, जो सिस्टम है आपका ब्रेन का, वो कैसे डिस्टर्ब हो रखा है. हाउ यू फोकस देन. ये देखो आप 35% चेक द फोन बिफोर गेटिंग आउट द बेड. उठते बाद में पहले चेक करते हैं. ओनली 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो बाथरूम में जाके ब्रश करते हैं. 16 से 17% ऐसे लोग थे जो सिर्फ पहले जाके कॉफी पीते हैं. 35% पीपल दे चेक देयर ईमेल फर्स्ट एज सून एज दे वेक अप. फोन को देखते हैं. नाउ लुक एट दिस.
people, even I have noticed so many times. Even last night I was with my son outside going to the city, come back in the train. तो देखा कि बहुत सारे लोग ट्रेन में भी they using their device. There was a time people they used to chat with each other. और कुछ तो फैमिली मेंबर थे जो अपने अपने डिवाइस पे लगे हुए हैं. Now people they lose their manners actually. डाइनिंग टेबल पे अपने मैनर्स भूल चुके हैं. They checking their devices, the phone. आप खुद देखो. और इसके पीछे हेल्थ का भी पर्टिकुलर रीजन है. सबकॉन्शियस माइंड जो देयर इज अ प्रोसेस इन दैट टाइम. अगर आप डिवाइसेस पे काम कर रहे हो और यू आर नॉट पेइंग अटेंशन व्हाट यू डूइंग एक्चुअली, दैट हैपेंस टू. ठीक है, वो होता है कि आप ब्रेन प्रोसेस नहीं करता एंड यू कीप कंज्यूमिंग द फूड और सबकॉन्शियस माइंड हैज अ ओल्ड पैटर्न कि जब मिल जाए तब खा लो, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So subconscious mind work on that way, and when the brain doesn't process, what happens? The obesity is one of the biggest challenge. और जबकि आज के दिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेल्थ पे काम हो रहा है. That's a really shocking surprise कि हेल्थ से रिलेटेड इतना काम हो रहा है, न्यू न्यूट्रिशन डाइट्स एवरीथिंग कमिंग, एंड still people obviously still sick. The reason, one of the best reason is that this is Forbes magazine की स्टडी है. They share about that. और आई हैव सीन दिस एंड 6 महीने पहले की बात है. यहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था. ट्रैम हिट द गाय कि द गाय इज कीप वाचिंग द फोन एंड गॉट हिट बाय द ट्रैम. तो ये चीजें हैं, आप लोग अपने सराउंडिंग में चेक करोगे. इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक वीडियो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. हैव अ लुक इन दैट. इट्स प्ले ओवर हियर. हियर यू गो. इट्स अ कमर्शियल एक्चुअली फोन का है और this can help you to understand कि लोग कैसे कैसे सिचुएशन में फोन यूज कर रहे हैं. And shocking and surprising कि how people they too much slaved by this devices basically कि हम लोग इस devices में इतने घुस चुके हैं कि अपने watch this. Really? It's time for a phone. Really? To save us from our phones. New Windows Phone, designed to get you in and out. So, अब ये जितने भी डिवाइसेस, जितने भी ये सोशल मीडिया है या वो चीजें हैं, what they are actually weapon for us. They are destroying us. Or mental health is destroying us. It seems like easy, but it's so dangerous. It's like a poison, the slow poison, that's killing our ability. That's killing our not to focus. So cognitive function उनको destroy कर रहे हैं. Seems like it's helping us, but they are not. They're not. The brain is built in a different way. The neurology has a different pathway, but these things are challenging. You will be surprised if I tell you कि अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं, one focusing in that, और उसको आपको disturb कर दिया जाए, just for 30 सेकेंड, अभी दोबारा उसी काम को आप जब शुरू करोगे तो इट विल टेक मोर देन 15 मिनट्स टू कम इनटू द सेम फोकस जोन. 15 मिनट लग जाते हैं, लगभग 15 मिनट के करीब लगते हैं उसमें. यू सरप्राइज. और ये जितने भी डिवाइसेस हैं, बिकॉज आई एम शेयरिंग ऑल टू कीप इन माइंड all the people they're using these devices. These are the weapons actually. So now the war against this distraction and how to win this war. The war which are facing in day-to-day life, this whole digital war. Though this is not real war actually, which the weapons, the cannons using like that. No, this is a war against with us. The war which I'm facing right now is a more digital world. Usko jeetna, usko control karna hai, then we can win. Then we can focus. We can sharpen our attention and pay the attention to proper things. कैसे जो distractions हैं उसके ऊपर win करना है. How we can do that? I'm going to share that. For that, there was a little bit about that for war से related. Share करता हूँ. कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपका फोन हम जिंदगी भर के लिए ले लें और if you want back it back, so what do you want to do that? So this is the study. Half of the people they said कि we want to leave our coffee, caffeine. 2/3 से chocolate छोड़ देंगे जिंदगी भर के लिए. Half of them said exercise छोड़ देंगे. It's not a big sacrifice for most of you. 70% said alcohol छोड़ देंगे. 43% जिंदगी भर जूते नहीं पहनेंगे. और ये स्टडी इंडिया में नहीं हुई है. ये pretty much यूरोपियन कंट्रीज और यहाँ पर हुई है. तो हो क्या रहा है कि रीजन क्या है, जो मैंने कहा कि जो वेपन्स हैं उनको लिए कंट्रोल करने के लिए काम की क्या जरूरत है. Now we want to work on treatment or work on the solution. So
there was a studies, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, ये मैस्मरो एक्सपेरिमेंट था, 1960s में किया गया था, और उसमें ग्रेटिफिकेशन की बात की गई है. उसके बारे में बाद में बात करूंगा. लेट्स वॉच दिस स्मॉल वीडियो and I'm pretty sure it's going to help you to identify the challenge and how one person can do better in their life. कहते हैं कि वो बचपन में आप समझो ना कि पूत के पालने में दिख जाते, समथिंग लाइक दैट, है ना, वो कहावत है हमारी. तो उसी तरह से स्टार्टिंग से ही हमें पता चल जाता है कि what we can do or not and how we can. It's not particular behavior personal, it's more about the act कि हम कैसे चीजों को करते हैं. Let's watch this and let's then talk. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. And stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need Alrighty. So have you noticed that the experiment they did, this marshmallow is a small sweet actually. बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको. तो ये एक्सपेरिमेंट करीबन 15 मिनट के लिए था और बच्चों को अलग अलग दिया गया. जो वीडियो था कुछ ही बच्चों को दिखाया और उसमें ये दिखाया गया कि जो बच्चे ऐसे थे कि जो अपने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को होल्ड कर रखा था, तो लेटर ऑन देयर लाइफ दे बिकम वेरी सक्सेसफुल. दोज हैव एबिलिटी टू होल्ड देयर अर्ज, they can make a better decision making में है, personality development में है, they really did amazing in the personal and professional lives as well. तो gratification को hold करना, delay करना is very important, very important. So that's a key part actually. जितने भी जो monkey brain है, जो monkey brain है उसको train करना in a way कि वो उसको कहते हैं ना कि नकेल लगाना, उसको like rein करना, मतलब basically harness डालना उस पे, तो वो important है.
तो वो जब आपका सीख जाते हो, they can easily control that, and that's come with the emotional intelligence. Okay, the same thing. Now we're talking about the more about uh, how we can train our brain. Okay, आपका जो conscious mind, everybody, because don't made another slide on that. Please write it down. The conscious mind है, intelligent mind है, very intelligent, very focused. Because of that concept, the frontal lobe mind, उसकी वजह से we create everything in the world, every single thing. अभी आप जिस डिवाइस पे मैं और बात करें वो भी उसी ब्रेन की उसी ने बनाया उसको. तो उस ब्रेन का काम क्या है, उसकी जो थिंकिंग है, जो इंटेलिजेंस है, उसका हमारा काम है कि वी वांट टू दैट थिंग इन आवर ऑटोमेटिक बिहेवियर, वी वांट दैट थिंग इन रोबोटिक बिहेवियर. वंस यू लर्न दैट एंड देन व्हाट हैपेंस कि जो आपकी गुड हैबिट है, डिसिप्लिन है, तो वो चीजें वहां पर होंगी. वो होता है कैसे, वी क्रिएट द सिस्टम, वी क्रिएट द स्ट्रक्चर, वी क्रिएट द रूटीन, वी क्रिएट द डिसिप्लिन दैट फॉर दैट, एंड देन इट्स हैपन विद दैट. ओके, तो वो आपका काम है. यू कैन डिसाइड, create the routine, structure, system for that, rituals, and you can make it that. जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, they pretty much know that कि कोई भी चीज है उसके लिए रूटीन बनाते हैं, वो एक सिस्टम तैयार करते हैं. आप जो बैट को कैसे पकड़ते हैं, कैसे ओवर करते हैं, बॉल कैसे करते हो, हाउ टू किक एज वेल, देयर इज अ सिस्टम टू गेट द राइट आउटकम. सो वो आपका इंटेलिजेंट ब्रेन करता है. इमोशनल ब्रेन का क्या है, उसका भी आपका जो इंटेलिजेंट ब्रेन दैट कैन होल्ड इट. Little bit smartness rather than reacting, responding, think before do that. वो emotional intelligence है. उसको आप identify करते हो what's the situation. Once you're able to identify, it means delete. Once you're able to do that, it's easy to hold that. Easy to hold the monkey. Otherwise, monkey क्या है, monkey बनाने दिखाओ, वो क्या करता है ना, कलाकारी दिखाता है अपनी. तो similar way, that's the key point. उसी की कुछ मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ. बिफोर गोइंग दैट, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हाउ टू क्रिएट अ लाइफ, है ना, जो आप लाइफ वो कैसे क्रिएट करते हो, बिकॉज यू क्रिएट द लाइफ बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपेक्टेशंस. व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन यू हैव, और द एक्सपेक्टेशन कम फ्रॉम वे यू थिंकिंग, and thinking come from where, what to study, what to learn, what kind of the environment you have in your surrounding. That's very important. Environment जो हम क्रिएट करते हैं, we decide actually. कहते हैं कि हम अपने ब्रदर सिस्टर को तो चूज नहीं करते, पर फ्रेंड्स को, कॉलेज को, स्कूल को, वी कैन चूज दैट. दैट्स इम्पोर्टेंट, हाउ वी पिक दैट. सो वो आपका एक जो सराउंडिंग का है एनवायरनमेंट, वो आप क्रिएट कर सकते हो. आई फॉरगेट द पर्सन, आई थिंक Dan Candy or someone, he said कि tell me your 5 friends and I tell you your future. That was his statement. कि आपके जो 5 दोस्त हैं, जो उनकी टोटल इनकम होगी उसकी एवरेज इनकम आपकी होगी. जो आपके 5 दोस्त आपके सराउंडिंग, उनकी टोटल जो एवरेज हेल्थ फिटनेस होगी वो आपकी होगी. तो व्हाट इज योर एनवायरनमेंट, हाउ यू चूज, हाउ यू क्रिएट एनवायरनमेंट, और क्या क्राइटेरिया है आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, दैट मेक डिफरेंस. सो इम्पोर्ट इज इन थिंकिंग, और सराउंडिंग का जो है थिंकिंग जाती है, एक्सपेक्टेशन क्रिएट योर लाइफ. लेट्स टॉक अबाउट द few techniques. First, I already share with the environment. अब हेल्थ से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ. सपोज आई डोंट हैव स्वीट्स. ओके, अगर मैं स्वीट्स नहीं लेना चाहता तो आई एम वेरी स्ट्रांग, आई हैव ग्रेट विल पावर, यू नो, आई डिसाइड आई एम नॉट गोइंग टू हैव स्वीट्स. बट इफ आई गो एवरीवेयर, one friend house, in my house, somewhere, they always offer me sweets, for example. Okay, I can't say them no all the time. Sometimes maybe I'll lose my willpower. If I at my home, I know कि दिस इज स्वीट्स, और मैं सारी स्वीट उठा के कहीं फेंक देता हूँ, तो क्या होगा, कोई स्वीट्स नहीं है तो टेम्पटेशन नहीं आएगी. आई एम नॉट गोइंग टू ईट. आई एम शेयरिंग सिंपल एज दैट्स अ वे टू क्रिएट एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, हम मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं. आप लोग में कितने सारे हैं जो बात करते हैं कि वो सीरीज आ रही है प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे, अदर डिवाइसेस, अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. तो क्या होता है कि आपका मंकी ब्रेन जो है वहां जंप मारता है. And once you decided कि I'm going to delete this app, so I'm not going to talk about that. आपने अपने फोन से ऐप ही डिलीट कर दिया, तो what will happen that you not watch that movie. That's a way to create your environment. So कोई भी चीज ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपके मेन एम को डिस्टर्ब करती है, can change that and create the right environment. So that going to help you. External environment, internal environment, what you study, what you learn is going to help you. Let's a little bit talk more about. Eyes follow what? I follow where you follow, you go there. It's more about the focus. Usually I do this exercise. All of you that is sitting somewhere, is not driving, okay? Sitting,
and check your surrounding and close your eyes. Close your eyes. Okay. आपने सराउंडिंग में देखा तो रेड कलर देखा किसी ने? नहीं देखा? और देखा तो दोबारा आंख खोल के देखो, फिर चेक करो कितने सारे रेड कलर. Just no need to share with me, just think. And now tell me कि ब्लू कलर कितने थे? आप कहोगे सर ये क्या था, आपने तो रेड बोला था, ब्लू क्यों पूछ रहे हो? That's the way to focus basically. The brain, the work focus like that. अब दूसरी जो चीजें हैं हम उनको अवॉइड करते हैं, but they always exist there. Similar जो ways, जब हमारे जितने भी distractions हैं ना वो वहीं पर रहते हैं. It's not like that we're cutting off them. They're always there, but where you focus, that's important. ये 82 keep your phone with 82% people, they always keep phone close to their eyes basically, not away. Not away. They always have somewhere. हाथ की दूरी पे होगा कि सामने होगा. 82% people reported that actually कि उनका फोन हरदम दाएं बाएं रहता है उनके पास. अच्छा, अब बात करते हैं हम कोई भी प्रोजेक्ट. आप कोई भी keep think, bring your mind any project, चाहे वो आपका स्टडी का है या कोई फ्यूचर में करियर क्रिएट कर रहे हो उससे रिलेटेड है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, anything, bring your mind right now. And once you look at that, it seems like it's a massive big project. अब massive big project लगता होता है तो फिर होता है क्या, overwhelmed. वही फील कि कैसे करेंगे. सभी के लिए साथ नहीं होता. 90% people they feel like that. I'm pretty sure about that. They feel कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कैसे करेंगे. Similar way जैसे पहाड़ पे चढ़ने वाला काम रहता है ना. तो इसके लिए क्या करते हैं, chunking down these people, few people know about that's a technique basically. कोई भी चीज है जो बड़ी है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं. जैसे 1000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, आप में से बहुत सारे होंगे वैष्णो देवी गए होंगे तो इतनी सारी सीढ़ियां होती हैं, तो एक बार देखे तो 1000 सीढ़ी चढ़ना है, पर आप सिर्फ एक स्टेयर पे फोकस करते हो. ओनली one stair, then one. You keep going. Similar way, when you see any project, उसको break it down करते हो. Break it down for 1 year, 6 months, 3 months, 6 weeks, 6 days. कि मुझे एक चीज करनी है. I write books as well. So book लिखी तो मैं एक बुक एक दिन में नहीं लिख सकता ना. I decided to go with the paragraphs. I was not a professional author. Okay, I decided जब तक नहीं लिखा था तब तक प्रोफेशनल था. Just writing is honestly एक पेज से ज्यादा नहीं लिख पाता था मैं. just एक पेज लिखते काफी लिखे, एडिट होके लगभग कम अराउंड 230-40 pages. But I did it. So that's a way to break it down. एक चीज को एक बार यहाँ पर काफी कॉमन चलता है eat the elephant. How to eat the elephant? इतना बड़ा हाथी कैसे खाओगे? Similar, bite by bite. एक पीस एक बार खाओगे. तो आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, you wanna focus, you wanna pay attention, you learn pretty much now कि आपको किस ब्रेन पे फोकस करना है, कैसे हार्नेस करना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है. With the conscious mind, break it down. एक चीज को करो, सिर्फ एक, for a moment, do one thing. उसके लिए जो एक टेक्निक है, Pomodoro technique. In this technique, what we do, I do as well, कि हम 25 मिनट्स का इसमें ब्लॉक करते हैं टाइम को, just for 25 minutes. Okay, 10-25. और उस 25 मिनट्स में और कोई चीज नहीं होती पर्टिकुलर, कुछ भी राइटिंग के लिए करता हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेन और पेपर, nothing else. 25 minutes, no device, nothing. And in 25 minutes, doesn't matter how much I write. I just stick with that one thought कि I'm here next 25 minutes to write something about this particular topic. Okay, 25 minutes बाद क्या होता है, वो स्पेशल क्लॉक होती है, आप अपने मोबाइल में डाल सकते हो. So it's ring and then we go for 5 minutes. Give a break. We're not doing any other task. In 5 minutes. I just go, take a long and deep breath, come back, relax and start doing another 25. I do 2 segments of 25 minutes with that in 1 hour and this become massive productive. So that's one technique, is a part of the how to eat the elephant. It's a part of sky box and stuff. ये technique
happen in the last moment, then again challenge. So that's another thing. You do it and put in the self, not a particular self out there in the brain, basically. The more important here. Yes, I know that what I need to do, keep it there. This is technique. Another technique is 80-20. It's very easy to figure out 80-20. आप लोग सभी अपने आप को फोकस करें एक बार कि आप जो जितने भी हैं लोग 80% ऐसे कपड़े पहन 20 आपके जो अगर 100 पेयर हैं तो 100 में से 20 पेयर ऐसे होंगे जो आप 80 टाइम पहनते होंगे। आपका घर का जो एरिया है उसमें से आप 80% 20% एरिया में रहते होंगे, पर्टिकुलर वन रूम में ज्यादातर रहते होंगे या कुछ लोकेशन ऐसी होंगी जहाँ 80% टाइम बिताते हैं आप। 80%। Keep in mind all these things. आप फोटो लेना चाहते हो इसका ले सकते हैं। Those wanna talk to me later on about this in detail, I'm more than happy to talk about that. So 80% और 20% जो है कोई बिजनेस में भी लगा लो, आपका कोई भी प्रोडक्ट है 20% आपका 80% बिजनेस रेवेन्यू लेके आता है। Now think about this. 20% का 20% है जो वो कितना पावरफुल है। 20% का 20% आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, especially those people are planning to become as athlete, especially in particular sportsmen, so they want to focus on particular few techniques, few tools, उन पे आप focus करो maximum, and you can see you're going to become outstanding. Soccer का है, they have pretty much few tools, they call it tools in soccer. So every single sports person has a 4 or 5 tools. They are expert in that, not more than that actually. और उसी की वजह से they always win the matches. अच्छा, आपको क्या नाम जो अपने कराटे में थे ली, तो उनका ये कहा जाता है कि he was a very good, so he always used to say that कि मैं उससे नहीं डरता जिसको the person knows more than like a 10,000 kicks, but I get the scared person who practice one kick in 10,000 times. What it shows कि particular one task, more focus, repeated, and the person do that. अच्छा, now I want to talk about the 4D. Everybody please write it down, 4Ds. ये कोई भी टास्क आपके पास आता है, स्पेशली द टीचर कीप इन माइंड दैट कि आपके पास कोई भी टास्क आता है, देयर इज अ टेक्निक, देयर इज अ फार्मूला दैट डिसाइड अबाउट दैट टेक्निक, टू मेक अ डिसीजन ऑन दैट टेक्निक. यू वांट टू डू इट राइट नाउ, डिसाइड कि दैट्स द टेक्निक व्हिच हेल्प मी अ लॉट टू मेक माई सेल्फ मोर प्रोडक्टिव. Any email, any task come to, I just put in the case, do I need to do right now, or delete, or delegate it, or delete it. I no need to reply this email, so what I do, I delete it. Or if something which I'm not able to do, suppose someone invite me and I'm not able to make it, so what I do, I ask my wife to go and attend that wedding or the event. So what I did, I delegate that. Or something important, my client called me, he sent me email, so yes, I need to reply right now, so do it. This technique helped me a lot to make myself more productive, very much productive. Whatever I do, quick action, I get to really pretty much better outcome, more peaceful, easy, because I don't take everything on my hand. I delete, delegate, or do it right now, or delete. Okay, it's not important. Put in the bucket. Later on, I'm going to do it. When I'm going to with my son, he's going to do his training, I will check at that time. I put in that particular slot. Yes, I'm going to do this at that time because that's time I can just only to watch him when he's doing training. So this is one technique. Now, pretty much everybody talk nowadays about the mindfulness, and we call it this a technique. There's a whole modality in psychology, acceptance and commitment therapy. In acceptance and commitment therapy, it itself says accept what is happening and commit for that. Okay, it's a big technique. There's 6 dimensions. In 6 dimensions, the 1 dimension about the mindful. Mindfulness is more about the meditation. Whatever we do, we need to be aware about what we're doing. Example, खाने के साथ ही लेते हैं कि हम जब खाना खाते हैं, because we watch the TV or phone or something, what happened? The mind doesn't process at the time. Mind जो है उसको information मिलती नहीं है कि भाई मैंने कितना खाना खा लिया है, तो mind आपका stop नहीं करता, and people keep shuffling, and then what happened? Overweight. So कोई भी एक्टिविटी करते हो आप, at that time you need to focus on that. खाना खा रहे हो, एग्जाम्पल खाने का इसलिए ले रहा हूँ कि I know that pretty much people suffer with that. So जैसे आपको टेस्ट के लिए आपको खाना देते हैं कि चलो सर थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है आज, जब वो जिस ढंग से खाते हो, you feel the flavor, you touch it, you feel the texture, you smell it,
आपको पता चलता है कितना स्पाइस कैसा है, खट्टा है, मीठा कैसा है, यू पे द अटेंशन और यू फील इट इन योर माउथ, स्मेल करते हो आप, है ना? तो दैट्स द वे टू ब्रिंग इन योर माइंड, यस दैट्स आई फील दैट। जब आप चेयर पे बैठते हो, यू नीड टू फील दैट कि आप चेयर पे बैठे हो। तो that's a simple technique actually, very simple. That's bring your whole awareness in focus in center. आप स्टडी करने से पहले जब भी बैठते हो, जो फील है कि हमें चेयर पे बैठा हूँ, हम फीलिंग राइट नाउ, माय बुक इज देयर, दिस इज थिंग, दैट्स सिंपल टेक्निक टू ब्रिंग योर अटेंशन स्ट्रेट अवे। आप फिर फोकस करते हो। एक टेक्निक करवाऊंगा अभी मैं आपको, जैसे पार्ट ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग कॉल्ड एंकरिंग, और उसमें आपके रिसोर्सफुल बनाते हैं आपको। यू कैन यूज एनी टाइम लाइक दिस। मैं टीच करूंगा आपको, पर प्रैक्टिस आपको बाद में करनी है। अभी मैं टेक्निक सिखाऊंगा एंड यू नीड टू जस्ट फॉलो दैट माय इंस्ट्रक्शंस। वंस यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड यू गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ यू एवरी सिंगल टाइम, डजंट मैटर कहाँ जाते हो आप, अगर एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या कोई इंटरव्यू है या कोई स्पीकिंग है, एनी टाइम वेयर यू गो यू कैन यूज इट, बिकॉज ये सारी चीजें होती हैं। आपका जो मन की ब्रेन है ना, that disturb you, कोई पब्लिक स्पीकिंग है, डर जाते हो आप, एग्जाम उधर है, स्ट्रेस होता है, कहीं और कुछ है, fearful situation आती है, तो I will help you to understand how to control that and become resourceful, because आपका conscious mind और subconscious mind can hold that. I will do that. Before that, ये फोकस का एक एक्रोनिम मुझे मिला, like someone shared with me long time ago, and मुझे याद था, then I found in Google as well. You know, if you don't know something, we need to search Google. So keep in this mind, what is the meaning of the focus? Follow one course until successful. That's the key point actually. तो इसमें जितने भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग में कोई खेती बाड़ी करने वाला होगा या कोई गार्डनिंग करता होगा। अगर उसने अपने डिसाइड किया कि मेरा ये पेड़ है या पौधा है, इसको प्रॉपर वे में ग्रो करना है, तो व्हाट दे डू, हाउ दे लुक आफ्टर दैट, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके जितने भी फालतू की जो ब्रांचेस हैं उनको कट करते हैं। स्पेशली जो फ्लावर उगाते हैं, जो फूल उगाते हैं, उनको ज्यादा देखना आप, दे ट्रिम एवरी सिंगल थिंग, जितने फालतू की जितनी भी टहनियां निकलती हैं उनको काट देते हैं। जो बेकार का नीचे से कुछ भी जमीन में जो उनकी पौधे की एनर्जी सक कर सकते दूसरे पौधे, उनको निकाल देते हैं वो। There's a pruning technique actually. So similar, we can do that. We need to focus. Stop every single distraction. Start today onwards. जब ड्राइव करते हो फोन को साइड में रखो, जब आप पढ़ने बैठते हो तो फोन को साइड में रखो, सोने से जाते तो दूर रखो। Whenever you study, make it show study in a way कि आप फोकस होके कर रहे हो, टाइम बाउंड होके कर सकते हो आप। And you need to learn how to reply, how to respond rather than react. The reactions come from monkey mind and it can distract you. So please keep in mind, there's a three brain. Conscious brain जिसको हम सेज ब्रेन कहते हैं, इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, उसको ट्रेन करना है इस ढंग से कि आपका सबकॉन्शियस का पार्ट बने। That can happen with your system, routine, ritual, structure के साथ होता है। कुछ भी करो आप, make it discipline। और इमोशनल ब्रेन को आप कंट्रोल करो, is going to help you a lot. Okay, so ये एक आपका क्वेश्चन था मैडम का, कि कुछ क्वेश्चन थे, वो वी गोइंग टू ओपन दैट एज वेल। तो उसमें से एक क्वेश्चन था मल्टीटास्किंग का। कुछ यहाँ पर टीचर्स या मैडम या जो मदर्स होंगी वो pretty much जैसे कि वी आर वेरी गुड इन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करने वालों के साथ फिजिकल सिम्टम्स बहुत आते हैं, जैसे कि हेडेक होना है, स्टमक पेन होता है, बॉडी दर्द करना। मल्टीटास्क वालों के साथ सबसे ज्यादा होता है मल्टीटास्क जो करते हैं। और ये कॉग्निटिव जो डिसफंक्शन होता है कि एज आई शेयर बिफोर कि इट्स टेक 23 मिनट्स वंस यू लूज द अटेंशन ऑफ पर्टिकुलर चीज से उसी फ्लो में जाने के लिए, उसी जोन में जाने के लिए इट्स टेक अराउंड 23 मिनट्स। तो वो आओगे 30 सेकंड, वहां खराब के अराउंड 25 मिनट्स आपको लगते हैं। तो दैट व्हाट हैपन, दैट मेक द पीपल मोर डमर, नॉट स्मार्टर। It doesn't make you smart, but people think, oh, we are multitasking or smart. Not really. We call this acquired ADD. ADD is a disorder, actually, attention deficit disorder. We call it in psychology. That few kids born with that, but most of the people nowadays, especially in this new era, they acquire it. They're learning to the multitasking. ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, फोन भी बात कर लेंगे, all this thing, and what happened? That's making dumber actually. So that's all for this presentation. I'm going to do this technique right now, and let me end up my show, and then here you go.
stop sharing and I do the technique with you all. Okay. Before technique, if anybody has any question, I would like to answer the questions. Because technique के साथ मैं I want to leave the whole room. So when I finish the technique, so you can all go and enjoy it. Because अभी technique करूँगा, फिर question answer करूँगा, it's going to be challenging. It's going to be, doesn't stay longer. Thank you, sir, for sharing such a wonderful thought with our participants. I hope all the participants enjoy it well and learn very much from this session. There is something technical, please. Thank you, sir, for sharing wonderful thoughts with our participant. I hope all the participants learn very much from this session. So there are some questions from our participant. Can we address them? Yes, please go ahead. Sir, there is a question of one of our participant. How to deal with overthinking and confusion and unclarity of thoughts? Okay. In one way, there's a technique, pretty much you all can find somewhere in YouTube or Google as well. We call it SMART, goal setting program. It's called SMART. SMART specifies specific. Because the confusion जब है, तो confusion जो है, उसमें clarity कैसे आती है? Need to decide कि what you want. Be more specific. कोई भी टास्क है आपका कोई भी टास्क ले लो, जो अभी हमने इतनी सारी टेक्निक डिस्कस की, इज अ पार्ट ऑफ वन दैट इज स्मार्ट. स्पेसिफाई करो उसको, मेजरेबल है वो कि आप उसको मेजर कर सकते हो. एग्जाम के तौर पे लेते हैं, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं. पर्टिकुलर समवन हु वांट टू बिल्ड अ पर्टिकुलर मसल, ओके, एंड ही सेड कि मुझे मेरी जो मसल्स की ग्रोथ इतनी करनी है, एंड स्पेसिफाई अबाउट दैट, ओके, एंड देन मेजरेबल कि अभी मेरी मसल्स की टोन ये है, इस तरह की है, इट कैन बी मेजरेबल. आई विल यूज दिस एग्जांपल एंड स्टडी एज वेल समहाउ इसकी, एंड अचीवेबल है कि यस आई कैन डू दैट, और इज रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड भी है. द 6 means like 6 weeks I'm going to do these are the exercise and I'm going to like this. Let's bring it in the example this in study. आप कोई पर्टिकुलर कोई चैप्टर है आपका, जैसे pretty much all the teachers making their plan as well. कोई आपका चैप्टर है, you decide कि ये स्पेसिफिक चैप्टर हमें 6 weeks में कवर करना है, ओके. दो चीज होगी, डिसाइड 6 weeks, टाइम बाउंड हो गया, स्पेसिफिक चैप्टर हो गया. अब स्पेसिफिक चैप्टर को आपको पता है कि 6 weeks में कवर हो जाएगा, अचीवेबल भी है ये और रियलिस्टिक भी है ये, है ना, मेजरेबल भी है कि यस वी गोइंग टू डू 6 weeks. फर्स्ट वीक में हम ये करेंगे, दूसरे वीक में ये करेंगे, तीसरे वीक में ये करेंगे. सो व्हाट हैपन, यू ब्रेक इट डाउन, स्पेसिफिक, मेक इट स्पेसिफिक फर्स्ट, कि वो जितना स्पेसिफाई हो क्लैरिटी आएगी, कंफ्यूजन खत्म होता है. कंफ्यूजन तब ज्यादा होता है जब पीपल दे आर नॉट रियली अवेयर कि उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है. दोनों कहते हैं दोनों चीज इंपॉर्टेंट, दोनों चीज कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है लाइफ में. दैट्स अ मिथ, बेसिकली बिगेस्ट मिथ, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट शोज योर वैल्यूज, कि आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है. आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आपके लिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट दे डोंट पे अटेंशन ऑन द स्टडी, दे गो विद देयर फ्रेंड्स टू हेल्प देम. सो व्हाट हैपेंड दैट टाइम द फ्रेंड्स इज इंपॉर्टेंट, है ना. सो दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती. जो इंपॉर्टेंट है वर्क ऑन दैट, that can help you. Break it down, consistency. Okay, I share my 4 C's. Please write it down. Whatever you want to do in the life, whatever though. As you said, the clarity. Get the clarity about with your values. Okay? First वो है. दूसरा फिर उसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करना, कमिटमेंट के साथ करना. The communication which we do with ourselves. Yes, I can do it. I know how to do it. I'm able to do this. These are 3 sentences I just shared with you, but all positive sentences. These all sentences can help me to focus more on that. जब मैं अपनी consistency के साथ काम करूँगा तो जितने भी distractions हैं ना, वो सबको दूर कर दूँगा मैं. If I'm committed for do something every day, every time, no one can stop me. So what happened then? I'm more laser focused in that and pushing the other things. When I'm committed for something, it's easy for me to say no to so many things. That's another thing which I would like to share with everybody. It's a part of the tool. You need to learn to say no to the people. When you become people pleasant, क्या होगा? आप स्ट्रेस लोगे.
हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और हर किसी को खुश करने के चक्कर में सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। तो यू वांट टू बिकम लेजर फोकस्ड पर्सन, नीड टू से नो। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जितने भी, उनका किसी का भी इंटरव्यू बायोग्राफी जाके पढ़ लो आप, they will tell you they want hundreds of opportunities to start some business, but they say 99 no, and they pick only one, because no gives you strength, no gives you power. If you go to say everybody yes yes yes, आपके पास वो 100% बैटरी है, वो जितने भी है सारी ड्रेन हो जाएगी। एज लाइक आपके फोन में अगर 100 एप्स हैं, सारे ऑन हैं, तो बैटरी हो जाएगी आपकी। 99 को बंद करो, एक को ऑन रखो, बैटरी क्या लंबी चलेगी। तो similar way, say no to 99, say yes to one. That helps you get the clarity, that helps you get the consistent committed, and you can see the outcome. I hope the student will get the answer. Thank you, sir, for such a wonderful explanation of this question. One more question. मेरे पिताजी एक किसान हैं, मुझे खेत में काफ़ी काम करना पड़ता है, जिससे मुझे पढ़ने का काफ़ी कम समय मिलता है। मेरे दिमाग में यही बात चलती रहती है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है। कई बार रात को समय मिल जाता है पढ़ने में, तो सोचता हूं कि अब तो रात हो गई है, सोऊंगा। इस तरह न तो मैं कॉलेज एग्जाम के लिए पढ़ पाता हूं, ना ही किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मुश्किल से 2 या 3 घंटे मिलते हैं स्टडी के लिए, वो भी दोपहर में। उसमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर, और कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा गाइडेंस दें। First of all, that's good to know कि you are helping your father. आप अपने पिता की मदद करते हो, बहुत अच्छी बात है। And the study का उसमें आपके फादर के साथ अगर हेल्प कर रहे हो, ठीक है, मदद कर रहे हो, तो वो फिजिकल वर्क है। फर्स्ट थिंग इज दैट, ठीक है ना। वहाँ अगर आपका जो थिंकिंग है, जस्ट प्रीटी मच एक मैंडेटरी वर्क कहते हैं ना, कि रूटीन का काम होगा वहाँ पर आपका, उसमें थिंकिंग का कम काम होता है। तो आपको स्टडी करने के लिए इट्स नॉट लाइक दैट कि आप स्टडी सिर्फ और सिर्फ एक रूम में ही बैठ के कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ पढ़ा, यू गॉट 2 hours एवरी डे, इट्स मोर देन इनफ। आई बिलीव इन दैट कि 2 घंटे एक दिन में फोकस होके मिलना बहुत बड़ी बात है। मैंने जो टेक्निक शेयर की आपसे, तो मैंने 25 मिनट की शेयर की है। 25 मिनट के 2 स्लॉट शेयर करें आपके साथ, दैट्स ओनली टू स्लॉट्स। उस 2 स्लॉट्स में आपने वट एवर यू लर्न इन दैट, यू नीड टू रिवाइज इन द माइंड, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिवाइज नहीं कर सकते। More you repeat is become, repetition is the mother of everything. Point was that. Whatever you want to permanent in the life, repeat it. The repetition is that can happen here. अच्छा, दूसरा आपने बात की कि is more over here for you is you're losing somehow your confidence कि मैं कैसे करूं. It seems like overwhelming things. जो अभी बात की हमने पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर में, सेम वे, जो 2 घंटे हैं उनको मैक्सिमम प्रोडक्टिव आप कैसे बना सकते हो, एंड दैट कैन हैपन ओनली विद योर शेड्यूलिंग, ओनली विद द ब्लॉकिंग। कि मेरे मंडे से फ्राइडे, सपोज करो आप मंडे और फ्राइडे, या मंडे से फ्राइडे 5 दिन आप हेल्प कर रहे हो, सैटरडे संडे आपको डिफरेंट टाइमिंग है, उन 5 दिन को अगर इफ यू डिसाइडेड, अगेन कीप इन माइंड डिसीजन, वंस यू डिसाइडेड कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज पढ़नी है मंडे को, ये ट्यूसडे को या थर्सडे को, आई बिलीव इट्स मोर देन इनफ फॉर यू to learn something in particular focus time. Focus, and then you can repeat it while doing the things. Can I share my thing with you, the guy who asked this कि अपने father की help करते हैं? I drive, okay, I take my son and my daughter, like I'm very family oriented person. मेरा business मैं अपने free time में करता हूँ, kind of that. Online होता है, when people want to book, I give my everything. The other point is this कि मैं जब भी कहीं भी कुछ भी करता हूँ, I just listen audiobooks. While driving, while walking, running, I listen my stuff. Read. I don't read that much as I listen. So what I'm sharing over here, there's not only nowadays, especially इस digital era में, you need to open the book. No. जो आप पढ़ना चाहते हो वो YouTube पे मिल जाएगा. If you have smartphone, focus that. पर ये नहीं कि YouTube के साथ आप गाने सुन रहे हो, ठीक है ना, कुछ और देख रहे हो. That's not going to be helpful at all. Utilize that time. There is a few activities for that. You no need a particular attention. Repetition के लिए आपको specific time की जरूरत नहीं है. First time you need a specific time. Repeat that anytime. Thank you, sir. One more. Loss of interest in everything without knowing the reason behind it. Okay.
loss of interest in everything without knowing the reason. Loss of interest तब होता है when you're not doing something which really interact like for your values, what's important for you. अगर आपकी values clarity है कि what's important in your life, उसके लिए आपके अंदर automatically energy आती है. Okay, I'll give a little example. हर किसी की एक hierarchy होती है values की. I tell you, okay? कि for example, I share with you, मेरी life में मेरी topmost मेरी family है. Topmost my family. ठीक है ना? For my family, I have everything. I have energy. Doesn't matter midnight they call me. I have money. I have full power. 2 घंटे पहले सोना तो भी उड़ जाऊंगा. Everything because my family is my topmost priority. After that, my clients my topmost priority. If they call me because I work in 7 countries right now, different timing zone, I work with them different times. अमेरिका की जो clients है रात को मैं 1 बजे भी बात करता हूं उनको. ठीक है? I never feel tired. Why I'm sharing? I'm giving my example because it's more authentic for me. That is, then my health. For health, I do look after myself. Those knows me from last 20-25 years, they know me how I maintain my health. Very important. Then my friend circle. Okay. Then social life. So my hierarchy is like this. If now someone's inviting me for the party, and my son calling me, I'm going to say no easily to party. I don't care. I care my son. That's my family. That's my value, basically. That's my value. If my client is calling and I need to go for a run, I delay my run. I go with my client first. That's my value, basically. When we are clear with our values, so energy automatically comes and we focus change it automatically. We got everything for our values, energy, money, time, everything. We're not losing the interesting. We're not finding the right values. When the conflict in the values, we start losing the value, interest as well. For that, you need to figure out of 10, what's more important for you. Write it down, whatever values you have, education, have career, have money, have health, have whatever, friends, have whatever is important for you. Write it down. Just write it down. Then give the rating. कि 1 में से 10 नंबर पे है कि ये टॉप मोस्ट है और 1 नंबर में लिस्ट है. 6-7 करते रहोगे. अगर 2 किसी का 6 आ जाता है, then toss it. What's important for me? That's why I share the values very, very important. Once you know what's important in your life, automatic things happen there. And with that one thing more, I would like to add over here. Sometimes people say, so I don't feel motivation. Motivation is for the moment. कोई गेम हो रहा है उसमें आप मोटिवेट कर सकते हैं किसी को फॉर ए वाइल. गो पंच द लाइक बॉक्सिंग में क्या करते हैं, दे मोटिवेट द पीपल राइट मोमेंट. पर उस बॉक्सर को एवरीडे प्रैक्टिस के लिए बुलाने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती. दे फील इंस्पिरेशन. फॉर देम टॉप मोस्ट वैल्यू इज द गेम. I want to fight for game for my country. I want to bring my country to the top level or my state, my family. मैं ये आज फाइट कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ. तो उनकी वैल्यू क्या है, फैमिली, एंड दे वर्किंग फॉर द फैमिली. सो वहां पर उन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली कम्स. मोटिवेट थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं आप. सो आई होप इट्स हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड. जिस भी स्टूडेंट का ये है कि आइडेंटिफाई योर वैल्यूज, व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट. और कभी क्या होता है, ट्रायल एंड एरर भी करना पड़ता है. इफ यू कांट डू द फर्स्ट टाइम, डू सेकंड टाइम, डू थर्ड टाइम, बट यू विल गेट इट. You will get it 100%. Yes. कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी के स्टूडेंट के दे वांट टू बी नो कि हाउ टू ग्रो इन द करियर. इज दैट? यस सर, बिल्कुल. तो साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, क्योंकि आने वाले डिकेड में सबसे ज्यादा डिमांड है मेंटल हेल्थ की. और आज के इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑल्टरनेट प्रोफेशनल्स भी आ चुके हैं, बहुत सारे, ठीक है ना. इफ यू गो एंड चेक इन द वर्ल्ड नाउ, there's lots of coaches, lots of life coaches right now. बहुत सारे coaches हैं. What they do basically, they is doing the same thing which we are doing and we going to do. Psychologist जो है mental health, because psychologist का बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है. They're not just helping in mental health. Bigger psychology कुछ नहीं होता. That's my belief, pretty much. बच्चा पैदा होता है उससे पहले साइकोलॉजी स्टार्ट होती है, और जो बड़ा होकर जितने
पैदा होता है, चलना सीखता है, जितने माइलस्टोन आते हैं, ठीक है ना, जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, ऑल दिस थिंग, स्कूल में जाने से पहले स्कूल के चैलेंज, कॉलेज के चैलेंज, all these things, emotional change, up and down, for life, marriage, all this stuff, then become father, parents, start the business, everything, everywhere there is a challenge. Every single milestone there is a challenge, and they need us. Being a psychologist, I need another psychologist every single time, kind of. A psychologist needs always other psychologists because we are human beings. We help each other. And after the death होती फिर grieving के लिए भी. The point is that कि psychologist की that much range है. जो मेरे ग्रुप में हैं उनमें से कुछ लोग हैं, I run a group actually, be a paid psychologist, और free है that group. उसमें actually पूरी 20 minutes की वीडियो है how they become a better psychologist, and join that group. डॉक्टर बागी को जो जानते हैं पर्सनली, she can help them. कि बी ए पेड साइकोलॉजी एक फेसबुक ग्रुप हमारा, उसमें काफी लोग हैं, एंड दैट्स ओनली फॉर द प्रोफेशनल्स, बेसिकली दोज वांट टू बिकम प्रोफेशनल. स्टूडेंट भी आ सकते हैं, उसमें ज्वाइन करते हैं. तो आई हैव देयर अ लॉट, यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन नहीं सकता, देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियोस इन दैट, गो एंड वॉच इट एंड लर्न इट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट डजंट चार्ज एनी मनी. पर साइकोलॉजी का स्कोप है, नो डाउट. आप सब अपने सराउंडिंग में चेक करिए, किसको इमोशनल चैलेंज नहीं आते हैं. पीपल वांट टू बी better husband, better wife, better father, is right? Better worker, better professor, better admin. Every single person desire, every single person. So they need help, actually. They need help. Or sometimes it's just help to conduct a small thing. Yesterday, one of my clients called me, first time. The person, simple technique, he was doing meditation, all this. Sir, मुझे टाइम ही नहीं मिलता सांस लेने का भी. वहाँ भी क्या हो रहा है, सांस ले रहा हूँ, that's it. And it was simple. आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने क्या उसको कहा कि अभी सांस ले रहा है ना, yes, बस टाइम नहीं मिलता सर सांस लेने, अभी क्या हो रहा है, सांस ले रहा है, yes, then focus. I did a meditation technique with him, 3 minutes, that's it, and bring his attention and feel within 3 minutes, yes, I forget कि I can do my meditation anytime. मुझे जरूरी नहीं कि मैं 10 मिनट प्रॉपर बैठ के ही मेडिटेशन करूं या 10 मिनट बैठ के ही अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करूं. एंड यू रियलाइज दैट दिस इज आवर फर्स्ट जॉब, टू ब्रिंग द अवेयरनेस कि यस आई कैन चेंज. फर्स्ट थिंग एज ए साइकोलॉजिस्ट व्हाट वी डू, वी ब्रिंग द पर्सन अवेयरनेस, देयर इज अ चैलेंज एंड यू कैन चेंज इट. दैट्स इट. Awareness, acknowledge, and change it. We have lots of tool and technique as a psychologist. We have lots of models, more than 100 modalities, and people can learn and do help. The psychologists, the future is bright, no doubt. Thank you, sir. Dear participant, you can also unmute yourself and ask question to our speaker if anyone want. Yeah, and we're going to do techniques. Make it sure, keep remember, before leaving, I want to make it sure I will give something to the tangible, कि आप जाके उसे करो and you become more productive, more focused. Anjali Bansal, which is the best seller? Anyone interested Like your from PhD? participants? And see, May I ask a question? Yes. Thank you so much for such a wonderful and insightful session, sir. I just want to ask, the techniques and things that you have actually guided, initially it might take time to be in regular practice with it. But जब हम अपने प्रोफेशनल सेटअप पे जाते हैं, जहाँ हमारे पास लगातार कई बार बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? लाइक यू सेड कि वी हैव टू लर्न द स्किल टू सी नो ऑल्सो. बट जहाँ पर हमारा बेसिकली प्रोफेशनल सेटिंग होता है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती. तो हाउ टू ब्रिंग दिस प्रैक्टिस इनटू द प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल सेटअप? प्लीज गाइड. okay, for you, focus on the 4D now. जो 4Ds की बात की आपसे कि आपको नो नहीं कह सकते, but can you delete? First thing that, can you delegate it? The other thing is that, okay, so आपकी इस प्रोफेशनल सेटिंग्स में यू नीड टू डिसाइड, एक्चुअली यू आर डिसीजन मेकर, कि आपको जो टास्क करना है उसको आप नो नहीं कह सकते. व्हाट एल्स यू कैन डू दैट? थिंक अबाउट दैट. अगर आप किसी के अंडर में काम करते, दे फील दैट वर्क इज वेरी वेरी अर्जेंट फॉर यू, देन यू वर्किंग फॉर देम, सो यू नीड टू डू दैट. बट समथिंग यू नो कि दिस आई एम डूइंग माय टास्क और माय थिंग एंड इट्स अफेक्टिंग माय पर्सनल लाइफ, देन यू नीड टू डिसाइड हाउ. Delete it,
Delete नहीं कर सकते, delay कर सकते हो, delay it, can't delay, delegate it. If you can't delegate, then you have only one choice, do it. Simple formula, you can do that. If professional setting, that's a key to make a decision. Or Thank you so much, sir. real example, I'll help you in a better way to understand. Otherwise, this formula can help you easily. Thank you so much, Anyone sir. else from participant? Anyone else can ask a question from our speaker? आई थिंक सर आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि अब किसी के क्वेश्चन बचे नहीं है सबको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है सर थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन टू पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन वन अनाउंसमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट देयर इज अ फीडबैक लिंक इन द चैट shared by GCG workshop. Is it shared, ma'am? Wait a minute. अभी शेयर नहीं किया है. Okay, we will share it while. Doctor, please hold a second. बाद में share करना. Let's everybody bring their attention over here. हम एक 10 से 12 मिनट की एक एक्सरसाइज करते हैं. If you have time. Okay, sir. तो उससे they can learn something good. Okay. I want everybody just listen my instructions. Okay. आप participate करो. Actively जितना आप कर सकते हो. आप अगर फोन है आपके पास तो ऐसी जगह रखो क्योंकि pretty much मुझे देखने की जरूरत नहीं है अब सिर्फ सुनने की जरूरत है. तो फोन है उसको ऐसी जगह पे रख दीजिए जो कि आपके हाथ में ना हो. लैपटॉप है. How is it good? And make yourself stand up. अगर आप जो खड़े होने की पोजीशन में हैं, ड्राइवर नहीं हो सकते, किसी का कोई चैलेंज है, कोई फिजिकल चैलेंज है, प्लीज डोंट डू दिस. ओके. आई वांट यू द पीपल ओनली दे फील कि यस दे आर एबल टू स्टैंड अप. खड़े होइए, ठीक है ना. आप खड़े होके जस्ट मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, रिलैक्स, शेक योर हैंड, शेक योर बॉडी. ओके. शेक योर हैंड, शेक योर बॉडी एंड रिलैक्स एंड कंफर्टेबल. स्टे देयर. जस्ट रिलैक्स, स्टैंड अप. ठीक है. पार्टिसिपेट करोगे, एक्सपीरियंस लोगे तो इट्स गोइंग टू स्टे फॉरएवर विद यू. सिर्फ आप सीखना चाहते हो तो आप विल गेट द नेम ऑफ दिस टेक्निक एंड गो एंड गूगल इट. सिंपल. एज आई सेड बिफोर कि आजकल कुछ भी नॉलेज की कमी नहीं है. द कमी किस चीज की है? इम्प्लीमेंट करने की. ओके. और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है आपको जो जितने प्लेटफॉर्म है वेरी रेयर दे गिव ए स्ट्रक्चर, दे गिव ए सिस्टम, they give a formula to implement this. Knowledge की कमी नहीं है. Knowledge तो आप सबके पास है, सभी बुक्स पढ़ते हैं, everything is there. So now, do it, participate and learn it. Okay, stand up, comfortable, relax. Okay, and you all are pretty good in imagination the things actually. I know that's a human being is born like that. Very rare situation happen कि जब हम कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी दुनिया में क्रिएट करते हैं हम इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट करते हैं. क्रिएट इन द माइंड फर्स्ट, देन वी इम्प्लीमेंट, देन वी डिजाइन. कुछ भी है, आपने कुछ भी बनाया है आज तक, पहले यहाँ बनाते हैं. व्हाट इट शोज कि आप सब क्रिएटिव हो. सो ब्रिंग दैट क्रिएटिविटी राइट नाउ. ओके, राइट नाउ. Yes, I'm a creative person. Think like that. Make yourself comfortable, relax. Okay, keep open your eyes. No need to be closed right now. And just feel creative. With open my eyes and look at on the floor. Look at the floor, and in the mental image, through the mental image, through the mind eye, we can see, create an image. There's a circle. And we are very good in that. I know that. Human being has that power. We are the only species that has that much power. Even you will surprise to tell you DNA के through 1.6 जो है, there's a difference between us and chimpanzees. 1.6, okay, and that 1.6 make difference. That's imagination. That's intellectual. That's his mind, we can say. So think that. Create a circle through your mind eye on the floor. Create a circle, and now you can close your eyes. Close your eyes and step in that circle. This imagination circle, they create that. Step in that circle. And you can see yourself through mind eye. You can close your eye and see through mind eye. Yes, I am in the circle. कि आप उस circle में हो. Okay? Now, step out. Go back to the same position. And through your mind, you can see they have created the circle in your mind. And now,
Think about any event or any incident which happened before. Any incident, any event that happened before, and that's give you confidence. Think about that. आप सर्कल के बाहर खड़े हैं, सर्कल आपके दिमाग में है, you know that where is a circle. Now you're remembering any event, any child situation where you feel confident. Doesn't matter the school, college, in childhood, any time you felt I'm confident. कोई परफॉर्मेंस किया आपने, कुछ राइटिंग की है या किसी ने कुछ भी किया है and you felt confident. Yes. Think about that thing right now. And bring the feeling inside you. Bring that feeling. Bring that feeling. And with this feeling, step in the circle now. Step in the circle with this feeling. When you step in the circle, at that time you can give any name, this feeling, any color. This feeling is coming you in your body right now. You can feel, yes, in that situation particular right now, feeling you are in that situation and the feeling is there. Your body can feel that. And this feeling has a color, any color. Now, think about another situation where you felt yourself fully focused, fully concentrated. You are in the particular one zone. Anytime, either you're making some kind of art, you're doing some work, or even you're listening music or doing some act, working on something, anything, and you felt at that moment, wow, I'm fully focused. कोई exercise है, meditation है, yoga है, anytime. It's not like a particular related to education or something. No. Everybody feel focused. When you do something which really give the interest that make you feel for that. I know the people, the engineers, they're very good in engineering things. When they in the workshop, they forget about the rest of the world. I know the artists, when start making something, they forget to have food as well. There's a few teachers over here, pretty much they know that, they can feel that. If the particular topic they start talking, तो topic इतना interesting होता है, तो time का ध्यान ही नहीं रहता उनको. Bring that scenario, situation, when you were in that scenario, situation, and how you're feeling. And those bring in that circle. To your mind, you can bring this in the circle. Give the name, give the color, any color, and step into the circle. Feel it. The whole body going to feel that. Now, third scenario. Any time, childhood, teenager, school, college, any place. Third scenario, where you feel really excited to do that thing, feeling curious to do that thing. So I want to learn about that. I want to know more about that. And you're paying attention. Bring that curiosity right now. How you feel when you're curious about something. The excitement level is different. The vibration in the body is different. Your attention change. Bring that curiosity right now. And feel that.
Go in that particular moment, step in that moment, and bring the feelings. See through your mind eye the situation and feel it. And listen what you're talking at that time with yourself or with someone else. How you feeling? See yourself in that. Who was with you? Bring that feeling right now and give the color, the particular feeling, any color in that particular circle. You're standing in the circle, give the feeling. You're curious, you're excited to learn something new. At the same time, you're focused, paying the attention. You're confident to do that. Yes, I can do. I'm fully focused and concentrated. I'm very curious to know that. Now step back out of circle. Stay for this moment. You can open your eyes if you close that. And the circle that's in your mind right now, create that circle again and step in. And watch your feelings. Watch your feelings. You're going to feel more confident. You're going to feel curious. You're going to feel more focused person right now. Because that's the resources which you have inside. As I said in the beginning of the talk, every single person, everything inside. There's no need to borrow from anybody else. We are born resourceful. हमारे अंदर है सब कुछ. Just हमें टैप करना होता है. कहते हैं ना, याद दिलाने की जरूरत होती है. हनुमान जी की जो बात की थी वही बात है. You all has that power. The time to just make you remember. You have that power. And bring that power. Use it. Now, go back again and pick that circle mentally. Mentally, दिमाग में से उठाओ circle को, put in a pocket. Everything mentally. Yes, the circle, I can pick it, fold it, put in a pocket. That's it. Purse में रखो, pocket में रखो, जहाँ भी. Because that's the invisible power. You can keep it with you any single time. Whenever you want, wherever you want, you can use this. जहाँ भी आपको लगे, yes, I need to be more confident. I need to be more curious. I need to be more focused. Bag खोलो. Yes, that's my circle of the excellence. Throw it on the floor. Yes. Chair पे हो तो chair पे डालो. Yes, I'm going to sit in my circle of excellence now. And believe in that, your subconscious mind is going to trigger and is going to bring all the energy in you. It's going to bring all the distress, focus, curious, and confident. And you're going to feel it. You're going to feel it. I don't know because I can't see the people over here. अगर कभी किसी के साथ ये टेक्निक यहाँ की है मैंने, किसी के साथ भी किसी भी time, or the person is still here, can talk, share what kind of experience the person had. कोई भी है यहाँ पर. अगर किसी के साथ की है, अगर किसी ने देखा है तो भी बता सकते हैं. Because I can't see anybody over here. Okay. Enjoy your rest of the day, everybody. That's all from me. If anybody has any question, please feel free to talk to me. मेरे personal contacts पे बात कर सकते हो आप. और जो student है psychology के, Facebook पे जाओ, वहाँ पर ग्रुप है Be a Paid Psychologist. ठीक है ना? यहाँ लोगो किसी ने शेयर किया था. I think विक्रांत था वो. So that's a logo, green logo there, and you can go and join that group. Okay, or best of luck for your future, everybody. I hope I serve everybody well. Thank you. Thank you, sir. Most welcome. Thank you, sir. How to be more focused in life. In her lecture, described that there is a problem not in knowledge, but there is a problem in the conduct of the knowledge.
Now it's okay, I think. Dr. Bagi, अब ठीक हो, पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी. And Raksha, that's a circle of excellence, the name of the technique. Circle of excellence. Sorry for disturbance. We are extremely sorry for. आवाज नहीं आ रही. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, yes. Now you're audible. Yes, yes, you are now audible. Thank you. सर ने बताया कि हमारा जो इनकॉन्शियस माइंड है वो पावरफुल है, लेकिन जो नियो टेक्नोलॉजी वर्ड है इसमें हमारा मंकी माइंड ज़्यादा पावरफुल हो गया है. तो उन्होंने वो टेक्निक बताई कि हम कैसे अपने मंकी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. और जैसा कि नाम ही बंदर है तो बंदर की तरह हरकतें हमें करनी छोड़नी होगी. हमें जो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ की उनसे दूर भाग के, जो एक वृतांत आता है महाभारत में अर्जुन का, कि हमारा फोकस मछली की आंख पे होना चाहिए. जो भी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में हमें उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. अगर हम अर्जुन की तरह सिर्फ आंख पे फोकस करेंगे तो ही हम आज के समय के अर्जुन बन पाएंगे. तो हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में ना ध्यान देते हुए हमें इमोशनली ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा उन डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए. और सर ने इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू अवर स्पीकर. सर ने ये भी बताया कि आजकल जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल नशे की तरह होगी. जैसे ड्रग्स का नशा बड़ा फैला हुआ है आज के टाइम पे, लेकिन उससे ज़्यादा जो एडिक्शन होगी है वो मोबाइल फ़ोन की होगी. मैं भी अपना एग्जाम्पल भी लेती हूँ कि मैंने अभी 2 घंटे हुए सेशन चलते हुए मैंने 20 बार अपना फ़ोन चेक किया होगा फॉर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन. तो ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम टीचर्स भी बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ गई हो. हम अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाते हैं ये बात कि हम टेक्नोलॉजी से कैसे दूर हो, क्योंकि हम खुद ही नहीं दूर हो पा रहे, तो उनको कैसे सिखाएंगे. तो एक क्वेश्चन इसमें हम नहीं पूछ पाए सर. देयर आर मोर देन 100 क्वेश्चन फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट और देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द टाइम. इसमें क्वेश्चन था कि हम अपने बच्चों की रीडिंग हैबिट्स कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि हम मोबाइल में देखते रहते तो बच्चा हमसे वही सीख रहा है, वो भी मोबाइल में देख रहा है. तो सर वो क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आप इसको अगर एक्सप्लेन कर दे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बड़ी हेल्प हो जाएगी. That's really great question. It's really amazing. It shows कि आप कॉन्शियस पेरेंट हैं जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा. It shows that कि they are concerned about their kids and I really appreciate them कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें. अच्छा, बच्चों की लर्निंग कैसे होती है? First of all, that we need to know that बच्चे आपके हैं वो लर्न कैसे करते हैं. Majority of the kids they learn observation. अभी कोई बच्चा है वो भी सीख रहा है. Okay. Majority of the kids learn through observation. The first thing is that. Okay. आपके ऊपर ये रूल लागू होता है कि आप कैसे सिखाना चाहते हो. If you read books, the kids going to learn to read the book as well. If you watch the phone, they're going to learn to watch the phone too. It's easy. First thing is that कि role model कौन है उनका, immediate role model. They follow that. Okay. दूसरा ये सिर्फ behavior challenge है because kids को logically आप नहीं समझा सकते. That's a worst challenge actually. Agar the parents try to make them logical, if there's a less than 7 or 8 years, okay, 8-9 साल से कम का बच्चा है, don't use any logic. Up to 12 you basically don't use that much logic. They are emotionally built. क्योंकि उनका subconscious mind तो पैदा होने से पहले start होता है. The subconscious mind learn the emotional language and symbolic language basically. So वहाँ पर आपको मॉडल करना है. दूसरा, make them feel कि ठीक है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा. अगेन कीप इन माइंड नो लॉजिक, बिहेवियर मॉडिफिकेशन. बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के 2 तरीके होते हैं. या तो प्लेजेंट, उनको अच्छी चीज जो प्लेजर करती है, खुश देती है, जैसे जनरली ऑल द पेरेंट्स डू दैट एक्चुअली दे डू फॉर देयरसेल्फ मोस्ट ऑफ द. अगर ये करेगा तो तेरे को ये मिलेगा. डू वी डू दैट? सो वी कैन डू द सेम टेक्निक ओवर हियर. दूसरा होता है पनिशमेंट. द पनिशमेंट नॉट फिजिकल पनिशमेंट. The punishment is more about they're going to miss something good stuff. They love to do something and they're going to miss if they don't do that. So a principle है, psychological student they pretty much know about that. We learn about that punishment and pleasure. This is basically the 2 rules. So आप अपने बच्चों के साथ यूज करते हो. Please, I have requested all the parents
Be a good role model. Be a good role model. I've seen that. I know I'm father of 2 kids basically. My son, he reads book every night before go to the bed. That's a system in the society over here. It's not created by me. Kids they learn. Okay, environment उसका ऐसा है. उसके दोस्त हैं, they read every night before go to the bed. He reads too. So that's a lot you learn. अब उसको देख के क्या है? मेरी बेटी है. She pick the books too automatically. I'm not teaching my daughter. My son he learns. Okay, मेरा भी काम है. Before go to anything I pretty much in education. So I learn. तो मेरी बेटी ने मेरे से रॉन्ग चीज भी सीखी, फोन के बारे में सीखा उसने, ठीक है ना, बट आई डोंट डू एनी मोर इन फ्रंट ऑफ हर. सो रोल मॉडल, हम अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं. तो बी ए गुड रोल मॉडल एंड यूज द पॉजिटिव एंड पनिशमेंट टेक्निक, बट नो फिजिकल हार्म, नो फिजिकल हार्म, नो फिजिकल हार्म. पनिशमेंट का मतलब डराना नहीं होता, पनिशमेंट का होता है कि लेट देम फील कि मैं ये नहीं करूंगा तो आई वांट टू मिस दिस. आई होप इट्स हेल्पिंग यू. थैंक यू सर. सर ने हमें ये भी बताया कि हम कैसे अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. सर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया. वो हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं, कछुए वाली और खरगोश वाली कहानी, वो हम बचपन से ही सुन रहे हैं. उसका आज असली में मीनिंग सर ने बताया. वैसे हमें समझ आ गई थी बचपन में ही, लेकिन वो फोकस के साथ कैसे रिलेट करती है, सर ने इसको बड़ा लेमन लैंग्वेज में हम सबको समझाया. सर हमारा जैसे बैकग्राउंड साइंस का है, तो हमारी साइकोलॉजी की टर्म के साथ वो इंटरेक्शन नहीं होती जो आप सबकी होती है, पर आपकी जो लैंग्वेज है, जो वे है हमें समझाने का, वो बड़ा सिंप्लीफाइड होता है. तो हम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, इवन जो स्टूडेंट भी नहीं है, हाउस वाइफ्स हैं, वो सब इस बात को बड़ी अच्छी से समझ पाए कि हम फोकस से अपनी लाइफ में अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं. सर कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम उस पर्सनैलिटी को शब्दों में नहीं बांध सकते. देयर आर lot of things I have to say, but there is a shortage of time. और पूनम मैम भी वेट कर रहे हैं for a thanks note. तो I invite Dr. पूनम बागी, convener of this workshop. Over to you. Thank you, Seema ma'am. Thank you very much. Respected Mr. Hamesh Yadav, Speaker of the Day, Dr. Gagandeep Kaur, Principal of the College, Dr. Shrestha Mural, Mrs. Sapna, Dr. Meenakshi Garak, Birinder ma'am, और मेरे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स, ऑर्गेनाइजिंग टीम और रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपके बिना ये हो नहीं सकता था. तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. I would like to extend a vote of thanks on the behalf of GCG Palwal Kurukshetra family to our resource person for sparing his valuable time from his very hectic schedule. Mr. Yadav very efficiently delivered his talk and patiently gave answer to the participants' query on many psychological issues, especially focus. Hamesh Yadav जी हमेशा हमारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए मेरी हेल्प करते हैं, और पिछले 3 साल में लगभग 5 इंटरेक्शन सेशन ऑनलाइन हमारे साथ ही कर चुके हैं. ये बहुत बड़ी बात है, और सर हमें इसी तरह से हेल्प करते रहिए. हम इंडिया से मेंटल हेल्थ इश्यूज के सोल्यूशन के लिए और साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रमोशन के लिए भी हम जिस तरीके से आप डेडिकेटेड हैं, उस तरीके से हम भी जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इनके लिए आपकी हेल्प बार बार लेते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सके. क्योंकि हम सबको पता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं हमारे इंडिया में, थ्रू आउट वर्ल्ड की ही बात करें तो बहुत ही कम है, और हमारे इंडिया में तो इनकी बहुत ही स्केर्सिटी है. और एक बात मैं अपने स्पीकर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर हमारी हर संडे को काउंसलिंग की क्लास लेते हैं, और इनका एक ही मोटो है. और जैसे अभी बात हुई थी कि बी अ पेड साइकोलॉजिस्ट, तो हम जितने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो उनको जो संडे को क्लास का एक मोटो जो है सर का, वो यही था कि हम साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उनके लिए हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी अवेयर नहीं है, तो उनको हम लोग क्यों नहीं मदद करते कि हमारी ये कोई इमेज
माइंड में नहीं आती है। पागलपन और इस तरीके की बात ही करते हैं लोग जब भी यूं साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बात करते हैं या कुछ भी है। तो क्यों ना हम इस इमेज को भी सुधारें और हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। तो मेनली जो हर संडे पिछले 2 साल से हम लोग सर के साथ है, बल्कि ज्यादा ही हो गया है टाइम, तो हर संडे 1 से 1.5-2 घंटे भी हो जाते हैं कई बार, तो किसी इशू को लेके हम चलते हैं। तो और सर ने मेरे कॉलेज के बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, और जब मैं करनाल थी तब भी सर ने मतलब पर्सनल जो है काउंसलिंग करी है। तो मैं यहाँ ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आइए, छुपाइए मत उनको। सर आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, पूरी साइकोलॉजी फैमिली आपके साथ है। सर ये आपकी महानता ही है कि हमें जो है इतना टाइम आप देते हैं। अब मैं, ये आपका प्यार है साइकोलॉजी के लिए और हम सब के लिए, और I would like to extend a vote of thanks to our worthy principal ma'am for encouraging to organize this virtual workshop. I would also like to special thanks to Madam Seema Nahar, जो सुबह से ही मतलब इस सेशन को होस्ट कर रही हैं। और इन्होंने, आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि शुरू से लेके आखिर तक, जब मैंने एक दिन हल्का सा ये वर्कशॉप कराने का, मेरे स्टूडेंट्स श्रुति ने ये मुझे बताया था कि मैम कोविड के बाद हम जो ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें। तभी से एक आइडिया मिला, मैंने सर के सामने रखा और सर ने कहा कि क्यों नहीं पूनम, जैसे आप हर साल करते हो तो क्यों ना इसी पे बातचीत की जाए। तो आज जो है सीमा नाहर मैडम ने शुरू से लेके आखिर तक, और जब से हम इस वर्कशॉप की बात चली थी तब से लेके अभी तक का जो भी है, इस काम को बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली वर्क किया। थैंक यू मैम। और मैं जो है यहाँ पे स्पेशल थैंक्स विनय सर, सपना मैडम, श्रेष्ठा मुराल मैडम, वीरेंद्र मैम हैं हमारे, और भी बहुत जो भी मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो वो हमेशा खड़े रहे। चाहे वो एक थम्स अप का ही था, तो थम्स अप करने में ही मुझे जो है बहुत एनर्जी मिली और इस वर्कशॉप को हम यहाँ तक ला सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सक्सेस इस वर्कशॉप की आप लोगों के बिना नहीं हो सकती थी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे संडे के जो फ्रेंड्स हैं, रवि सर, विक्रांत, उर्मिल पंघाल मैडम, प्रोमिला दीदी, सुनीता चांद मैम, आप सबने जो जिस तरीके से इस वर्कशॉप के ब्रोशर को सर्कुलेट किया, मीट के लिंक को, यूट्यूब पे भी ये हमारा जो चल रहा है, और आपने देखा होगा अराउंड 100 पार्टिसिपेंट तो यहाँ पर ही थे, और यूट्यूब चैनल पे भी हमारे काफी पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सबने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप सबके इस रिस्पॉन्स की वजह से हम आगे भी फ्यूचर में भी इस तरीके की वर्कशॉप कराने की हमें मोटिवेशन मिली और हम कराते रहेंगे। सर हमारा इसी तरीके से साथ देते रहना। और इस एक स्पेशल थैंक्स आप सबका, मीडिया पर्सन्स का और मेरे सभी साथियों का, आप सबका। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मैंने कल ही जब मैं ये वोट ऑफ थैंक्स के लिए कुछ लाइनें अच्छी सी स्पीकर के लिए देख रही थी, तो मुझे एक बहुत अच्छा सा ये मिला, जो मैं भी आपको अपनी वाणी को विराम दूंगी, कि नो डाउट कि हम फोकस की बात करते हैं, हमेशा फोकस हमें रहना चाहिए। और सर ने जो टेक्निक्स, 7 टेक्निक्स, एक से एक बढ़ के जो टेक्निक्स बताई है, तो उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके भी हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव थॉट्स है कि पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। तो अपने आकाश आपका, आप एक कदम उठाइए, आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए, सब बहुत इजी है, यू कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम फॉर थैंक्स नोट। Am I audible? Am I audible? Yes, you are. थैंक्स सर, थैंक यू मैम। सर हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहें और हमें हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही फोकस मास्टरी में मास्टरी कराते रहें। और अब मैं प्रिंसिपल मैम से परमिशन चाहूँगी कि क्या हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं? यस। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपने हमेशा हमें एनकरेज किया, प्रिंसिपल मैम का स्पेशल थैंक्स है। वो हमेशा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रही हैं और इस सेशन को ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कराने में प्रिंसिपल मैम का बहुत अच्छा योगदान रहा है। थैंक यू मैम। सर थैंक यू सो मच।
Thank you.